And from the young age, he was very much involved in Krishna, Lord Krishna. So, and he used to visit the temples and all the nearby temples every day. So eventually, he was in quest to know who really Krishna was, and then he was. He got self-realization in 1977, and since then he was in Drag Vignan. Ever since that, Okay, welcome to everybody. Selflessly working around the world, going everywhere. And So we'll start he was the initiated by introduction. Sri A. Patel, who was a contractor by trade, now known as Dada He's Bhagwan, from Baroda. and who was realized in Surat Station in 1958. My challenge is from Baroda, and from the young age, he was very much involved in Krishna, Lord Krishna. And Vitrak Vignan is assigned to visit temples and all the nearby temples every day. So eventually, he was in quest to know who really Krishna was, and then he was. He got self-realization in 1977, and since then he's in Vitrak Vignan, Krishna Bhagwan, Mahavir Swami, that. And this, and this Vitrak Vignan is a conversation. He was initiated by everybody else. Saryan was a contractor, by trade. English now known as Dada Bhagwan. Everybody was realized in Surat Station in 1958 when he was waiting for the train. So from there, there are a lot of questions sometimes occur we cannot answer, we cannot get. So Vitrak Vignan is a science of Vitragas. Last Saturday we talked on Krishna Bhagwan, taken care of their. Unfortunately, I don't see any. Sorry. Pardon, we don't see Jains, but we see Jains here, and now from Janmashtami we are transitioning to Krishna Bhagwan, starting tomorrow, Mahavir Day of Paryush. Okay, so and this Vitrak is lucky to get both. Everybody does Krishna Jayanti and Paryushan outlook. The English house is for what it is. Okay. So everybody is questions. Last time they do start person satsang किसी को question है. So from there I can start by a lot of questions sometimes occur we cannot answer, we cannot get. So those are the things. If you have questions, any questions. Last in English Saturday we talked. Vitrak I said are the greatest souls. Now fortunately who has conquered their. Pardon, we don't see Jains, Krodh, Man, Maya, Lobh. We see Jains here, and now from Janmashtami, they transition to Paryush. And then Rag and Dvesh. Starting tomorrow, they don't have Rag or Dvesh. And those are the like our Adina. We are lucky to all the get both Ram Bhagwan, Krishna Jayanti and Paryushan, and the latest outlook, And if you see, how do you recognize there is any questions from last time we can. You see, start person. We have been taught that I I can start by asking a question. Okay? Ram Bhagwan. What is it called that? English. Purushottam? In English? Okay. Vitrak I said Bhagwan are the greatest souls. Okay? Who has conquered with their pure, full of Krodh, Man, Maya, Lobh. Okay? Vishays, that's attachment. Going back and then Rag and Dvesh. Thousands, they don't have Rag, then we have, and those are the like Mahavir, our Adina. So what did he say? Mahavir, all the Tirthankara. He gave us the five principles. Krishna Bhagwan. Okay. And the latest soul. These are the great souls, and we realize. But how do you recognize that during their era was different in the world? You see that we have been taught lives of every type and all that was going on. If you look now, we are in Kali Yuga. Okay? In Kali Yuga, Ram Bhagwan. How is it called that? Is Gita applicable. How is Agam Krishna Bhagwan for Jainos applicable? And who's going to make us understand? Pure, everything in the books full of, but then we read books and people is interpreted by books. But here we are going back Bhagwan source
thousands of whole years. cycle of the Then world. we They have translated all Mavi this Swami. stuff into So practical. what did he life. say? Mavi Swami. So that is He the gave us the 5 So with that, there's no question. So, these are the great souls who अभी realized. But परीक्षण the thing is, last time during हमने, their era was different in the जन्माष्टमी के world. बारे में किया. हाँ हाँ तो I think You know, हिंसा Satyuga, अहिंसा and, उसके बारे में बात करना क्या हिंसा क्या है Now हिंसा क्या we क्या are आपने in लास्ट Kali टाइम Yuga. किसका क्वेश्चन Okay, किया in धर्म Kali Yuga, और धर्म how आपने पूछा था is तो वो Gita धर्म और धर्म का applicable? अच्छा तरह से बताया था तो अभी for Jainos ये applicable. You know, who's going to make try us to get अहिंसा और everything in the हिंसा books, क्या- but then we read books and हिंसा it करते is हैं interpreted by दिन में कितना हिंसा करते Here with Ragas, like Dada Bhagwan saw some the says whole cycle of the world Some and then he okay, translated अहिंसा all कितना this करता है into Okay. practice. अहिंसा That का is- पालन कितना करते हैं? so that is अहिंसा the का difference. पालन कितना करते पालन so with that कितना करता है? there's no question हिंसा so का हिंसा का पालन पालन कितना करता अभी पर हिंसा कितना pollution आने वाला है हाँ, हो लास्ट टाइम जाती है। हमने Okay. so जन्माष्टमी के these are the बाद। question हाँ, हाँ। तो आई थिंक asking ourselves, हिंसा sadhana, अहिंसा उसके बारे में बात करना So, क्या with हिंसा that, क्या we will है have अहिंसा Swami क्या क्या आपने लास्ट टाइम इसका question पूछा हाँ। धर्म और धर्म। अब बच्चे ने Okay, आपने पूछा था तो वो धर्म और धर्म का अच्छी तरह से बताया था तो अभी पहले हम निष्पक्षपाती त्रिमंत्र बुलाते हैं जो ऋषभदेव भगवान थे आदिनाथ। हम हिंसा करते हैं 24 तीर्थंकरों कितना में हिंसा करते हैं? सबसे प्रथम Some says, yeah, आदिनाथ, some जैन लोग अहिंसा आदि कितना भगवान भी करता है? बोलते थे आदिनाथ। Okay. अहिंसा का पालन आदि यानी कि शुरुआत, अहिंसा का 24 पालन तीर्थंकरों। कितना पालन करते कैसे- मुसलमान कितना में करता है? वो आदम बोलते और हैं, हिंसा का वही पालन कितना आदिनाथ करता को, और हिंसा कितना आदिनाथ भगवान को हो जाती है उसको ऋषभदेव भगवान These are the questions से we should be asking पहचाना ourselves. जाता है। साधना- केसरिया सुना होगा, तीर्थ So, with that, तीर्थ क्षेत्र है राजस्थान में। मंत्र बोला ये पहले हैं? वहाँ मंत्र बोला हाँ और अब बच्चे ने दादा भगवान और सब जाते थे आदिनाथ। ऐसे बहुत ऐसे तीर्थंकर त्रिमंत्र का आदिनाथ का पहले हम निष्पक्षपाती त्रिमंत्र बुलाते, पार्श्वनाथ का भी है जो शांतिनाथ, ऋषभदेव भगवान थे आदिनाथ, पार्श्वनाथ। 24 तीर्थंकरों यानी कि जो बहुत फेमस हो गए सबसे ऐसे आदिनाथ तो धर्म की मुख बोलते, जैन लोग आदि भगवान से बोलते थे आदिनाथ। इसकी पहचान आदि यानी कि शुरुआत 24 मुसलमान में वो आदम और ऋषभदेव भगवान के टाइम पे ऐसे आदिनाथ सब धर्म अलग अलग नहीं थे, भगवान सभी एक थे। पारसी है पहचाना जाता, हिंदू है, केसरिया सुना होगा, मुसलमान है। तीर्थ टाइम पे आदिनाथ भगवान ने सिखाया वहाँ कैसे रहना चाहिए, कैसे खेती करना चाहिए, दादा भगवान और शस्त्र कैसा यूज करना चाहिए। ऐसे तीर्थंकर और का आदिनाथ का है व्यवहार का व्यवसाय के लिए पार्श्वनाथ का भी है। शांतिनाथ आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, आदिनाथ भगवान है कि धर्म की शुरुआत यानी कि जो ऐसे हुई बहुत फेमस हो गए तो ऐसे आदिनाथ निष्पक्षपाती धर्म की मंत्र बोलते तो बुलाते, ऐसे शॉर्ट में भी समझाएंगे। इसकी पहचानने के लिए एक मंत्र रिपीट कर 24 नमो अरिहंताणम। तो ऋषभदेव भगवान के टाइम पे नमो सिद्धाणम सब धर्म अलग अलग नहीं थे, नमो सभी एक थे। पारसी है, हिंदू है, शिवपंथ है, नमो मुसलमान है। वो टाइम पे आदिनाथ भगवान ने सिखाया कैसे रहना चाहिए, कैसे खेती करना चाहिए, वो शस्त्र कैसा यूज करना चाहिए, ऐसे व्यवहार सब व्यवसाय के लिए भी उन्होंने सिखाया। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा आदिनाथ मंगलारम की शुरुआत ऐसे हुई थी। तो निष्पक्षपाती मंत्र हम बुलाते, नमो भगवते वासुदेवाय, बुलाता हूँ आप रिपीट करना, नमो अरिहंता, ओम नमः शिवाय, नमो जय सच्चिदानंद,
नमो आय पहले जो मंत्र बुलाए ने नमो रियंता से नमो वज्रायाणम वो जैनों का है। ओम नमो भगवते वासुदेव वैष्णव का और ओम नमः शिवाय शिव धर्म का और जय सच्चिदानंद सो सच्चिदानंद जो पंचमुखारो अंदर बैठे हुए भगवान का सच्चा स्वरूप सर्वपावपणा और आनंद मंगलाणम च सौवेसी तो ये संसार विघ्न निवारक पड़व है। हवै संसार में जो भी विघ्न आते वो ये सभी ओम देव नमो देवताओं भगवते वासुदेवाय ये धर्म का रक्षण करते हैं और जो मंत्र बोलते हैं ओम उसका भी नमः रक्षण शिवाय। करते हैं ये त्रिमंत्र के जय शासन रक्षक सच्चिदानंद। देवता। तो नमो अरिहंताण अरिहंत पहले जो मंत्र बुलाए ने नमो जिसने अरिहंता से दुश्मनों पे जीत पाया है नमो देहधारी वो जैनो है। ओम नमो भगवते वासुदेव नमस्कार करने का और मेरे अंदर भी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष और जय सच्चिदानंद यानी कि उसके पे हमें भी जीत पाना है। अंदर बैठे हुए बाहर वाले दुश्मनों ज्यादा हैरान नहीं करते और हम पहचानते और आनंद उसको हम बोल भी सकते हैं सॉरी भगवान को और माफी भी मांग सकते हैं। और तो ये संसार विघ्न निवारक मंत्र है और आंतरिक संसार में जो भी विघ्न आते तो उस पे जीत पाना है। सभी देव जीत पाए हुए पुरुषों का हम नमस्कार निष्पक्षपाती हमारा लक्ष्य भी धर्म का ध्यान करने आ जाता और जो मंत्र बोलते उसका भी रक्षण करते देव जो हमें परेशान करता शासन रक्षक देव देवता तो उसको भी हमें तो नमो अरिहंताण है तो अरिहंताण बोलने से जिसने दुश्मनों पे जीत पाया है दुश्मनों ऐसे देहधारी जानकारी होगी उसको हम नमस्कार करते। क्यों नमस्कार करने का हमारे अंदर भी क्रोध सिद्ध पुरुषों को नमस्कार करते उसके पे हमें भी विराजमान है। 24 बाहर वाले दुश्मनों ज्यादा हैरान नहीं करते सिद्ध गति में और हम पहचानते हैं और जो हम बोल भी सकते हैं सॉरी और माफी भी मांग सकते हैं हमें भी और उन्होंने सबको हिसाब सिद्ध गति में एक दिन जाना आंतरिक दुश्मन हो तो हमें भी जीत पाना है कि भगवान तो जीत पाए पुरुषों का हमें भी याद करते हैं कि हमें भी जन्म मरण से छुटकारा पाने के बाद सभी कर्मों का अंदर वाला निपटावा के बाद जो हमें परेशान करता हमारा लक्ष्य कहाँ है तो उसको भी हमें उस पे भी जीत पाना है। तो नमो आचार्य भगवान को अपने अंदर बैठे आत्मज्ञान की पहचान होगी और आचार जानकारी होगी पालते हैं और वो पुरुषों पालन करने का नमस्कार भी पहुंचेगा। नमो सिद्ध पुरुषों को नमस्कार उपाध्याय भगवान वो भी आत्मज्ञान के विराजमान है वो पढ़ते हैं आत्मज्ञान के लिए आगे वो सिद्ध गति में गए राम बढ़ाते हैं और जो भगवान यानी कि एग्जाम्पल जैसे लेक्चरर होते तो स्टूडेंट को पढ़ाते हमें भी और पढ़ते हैं प्रोफेसर गति में एक दिन जाना है ऐसे नमो ऊपर में भी भगवान तो नमस्कार करते तो नमो लोहे हमें भी ये जन्म मरण से ब्रह्मांड में 1 करोड़ साधु कर्मों का साधु निपटावा के बाद नमस्कार करते हैं सभी साधु साधु को नमस्कार कहाँ है उधर जाना। दादा भगवान ने क्या बताया साधु कौन नमो आय जो आचार्य दशा साधे वो आत्मज्ञान के सही थे जो भगवा वस्त्र पहनते सफेद वस्त्र पहनते कि संसार का त्याग करके लौकिक भाषा में साधु बोला जाता है बोलते आचार्य मगर लौकिक भाषा में आत्मज्ञान के सहित होते वो पढ़ते हैं आत्मज्ञान के लिए आत्मदशा साधती है सरल हो जाते हैं क्रोध मान माया लोभ कंट्रोलेबल लेक्चरर होते तो स्टूडेंट को पढ़ा किसी को भी और नहीं देने का पढ़ते हैं उसकी भावना के लिए और आत्मज्ञान में से आगे बढ़ने के लिए पाया है वो साधना उनकी नमो कंटिन्यू हो तो वो साधु ब्रह्मांड में शादी किया तो दिक्कत नहीं है साधु भी साधु है हम नमस्कार करते हैं हम बोलते हैं कि शादी नहीं किया वही साधु है जंगल में गए दादा भगवान ने क्या बताया साधु को भगवान की परिभाषा में जो आत्मदशा साधु है वो साधु है जो सरल हुए जो भगवा वस्त्र मान माया वस्त्र पहनते कि संसार घर में त्याग करते हैं लौकिक भाषा में साधु मेरा ही कर्म का उदय है मगर अलौकिक भाषा में है वो देने वाला कोई नहीं जिसने मेरा ही कर्म का है ये आत्मदशा सामने वाले सरल हुए दोस्त क्रोध मान माया लोभ कंट्रोलेबल हुआ है
और उसको मूर्छा नहीं रहती, दुख नहीं देने का, किसी की बात का उसकी भावना होती है, परिग्रह भी नहीं रहता। आत्मज्ञान में देखने में बढ़ने के लिए लगेगा परिग्रह, पाया है आत्म, मगर साधना उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई चीज आवे तो वो साधु होते, मगर शादी किया तो सभी आग्रह छूट जाए, साधु है। हम भगवान के शादी नहीं किया वही साधु, जंगल में गए साधना की और संसार त्याग, भगवान की परिभाषा में जंगल में गए साधु कौन है? वो लौकिक भाषा है, दो भाषा होती है, भगवान की परिभाषा और लोगों की मान्यता वाली। क्लेश नहीं होता है और उसमें हम किसी को मेरा ही कर्म का उदय है और मुझे जो सुख दुख आता है वो देने वाला कोई नहीं है, मेरा ही कर्म का हिसाब कृष्ण भगवान सामने वाले को निमित्त निर्दोष देखता है। ये साधु का लक्षण है, कल्याणकारी पुरुष, और उसको मूर्छा कल्याण हो गया, किसी की कल्याण में निमित्त बन, परिग्रह भी नहीं रहता, सब देखने में लगेगा परिग्रह नमस्कार कर, मगर अंदर से उसकी कर भगवान को आवश्यकता शिव शब्द चीज आवे तो आप स्वीकार करते, मगर पहचान आग्रह शिव सभी आग्रह छूट जाना होगा आपने। तो भगवान की कल्याण हो गया और दूसरा कल्याण में लौकिक में तो जो और दादा भगवान का टुक में परिचय में देता भगवान की साधना और लौकिक भाषा है, दो भाषा होती है, भगवान की परिभाषा और लोगों की मान्यता वाली परिचय छोटा है, उसमें हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। जैसे कोट टोपी वाले इधर नमो पहना है वासुदेव, नर में से नारायण पुरुष, ऐसे वासुदेव भाद्रण गांव कृष्ण भगवान को खेड़ा जिला अभी तो और जिला हो गया, कल्याण का नजदीक है, आनंद से भी नजदीक कल्याण हो गया चरोतर, और कल्याण में निमित्त बन 6 गांव बोलते, बड़े बड़े गांव हो गए, उसमें भाद्रण गांव के वतनी नमस्कार उनका 1908 कर भगवंतों को भी एक शिव शब्द में देवले वापरा है, 80 साल की आयु पहचानने के लिए शिव 1958 में सूरत के प्लेटफॉर्म पर जिसका कल्याण हो गया और ट्रैवलिंग में ट्रेन चेंज करने का होता है, और दादा भगवान का बाकी में परिचय में भुसावल नंदरबार से ट्रेन आती है, इधर की सूरत से चेंज करके बड़ौदा आने का था, सोनगढ़ में दिखाई देता है फोटोग्राफ, पीछे छोटा सा काम था, तो बड़ा है। जैसे कोट टोपी वाले 15 साल पहना है, साथ सेवा में भी थे, और ऐसे स्टेशन पे भाद्रण गांव जल्दी खाना खा लेते थे, खेड़ा जिला पहले, अभी तो और बैठे थे जिला हो गया, और ट्रेन आने का बड़ौदा से नजदीक है, आनंद से भी नजदीक है, भाद्रण चरोतर बोलते, तो उनको आने का था वही ट्रेन में बड़े गांव हो, और उसमें भाद्रण गांव के खाना खा के बैठे उनका, और 1908 में जन्म हुआ, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन 88 और दर्शन यानी क्या हुआ 80 साल की आयु में, और 1958 वचन का क्या प्लेटफॉर्म पर उनका ट्रैवलिंग में ट्रेन क्या है, पूरा ब्रह्मांड है, और 1 घंटा कर्म क्या है, भुसावल नंदरबार से ट्रेन आती है, सूरत से वचन का है बड़ौदा, मेरा और मैं और मेरा सोनगढ़ में जो सो मिलती उसके मन वचन का ये शरीर पे मालिकी भाव का, दूसरा भी एक लड़का 15 साल का उनके साथ सेवा में ओनरशिप थी, ऐसे स्टेशन पे मैं शरीर हूँ और मेरा खाना खा लेते थे सूर्यास्त पहले, ऐसे निकल गया, और मैं शुद्ध चेतन आत्मा, ट्रेन आने का निरंतर ऐसा ज्ञान को रहने लगा, तो उनको आने का था वही ट्रेन में बताया नहीं, और 1962 में खाना खा के बैठे थे जाकर, और ऐसे ही था पूरा ब्रह्मांड का दर्शन वार्तालाप से, और दर्शन यानी क्या हुआ कि मैं कौन सत्संग की बात, ये मन वचन का या क्या है, को लगा कि मेरा रब क्या है, ये दादा है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, कर्म क्या गुण है, परमात्मा जैसे भगवान जैसे उनकी वाणी निकल वचन का पे जो मेरा और मैं और मेरा पर जो मालिकी भाव, ऐसे अनुमान वचन का ये शरीर पे मालिकी भाव का दादा नहीं है, दादा भगवान की भाव निकल गया, तो बोलते थे कि मैं दादा भगवान नहीं हूँ, फिर मैं शरीर हूँ, दादा मेरा है, वो खुद बोलते दोनों ऐसे निकल, दादा भगवान शुद्ध चेतना के निमित्त से निरंतर ऐसा ज्ञान को जुड़ा दिया रहने लगा, दादा भगवान शब्द बाहर 4 साल तो किसी, पर वो क्या बताते थे, अंदर जो प्रकट में हुआ आत्मा सो परमात्मा, लड़का आपके अंदर भी कृष्ण भगवान है, राम है, महावीर है, ये कोई दादा भगवान है, ऐसे बहुत सत्संग की बात हुई, वो भगवान किसको बोलते को लगा कि शरीर को भगवान बोलते, दादा है अंदर आत्मा तत्व कुछ भगवान बोलते,
बहुत उच्च गुण दादा है, भगवान ने दूसरी भी परमात्मा बात की, जैसे शरीर भगवान जैसे कैसा है, उनकी वाणी निकल रही है, जन्म हुआ उसका उसका ज्यादा विनाश परिचय होगा। में आने से भगवान क्या है? उनको अविनाशी। ऐसे अनुभूति उसका हुआ विनाश कि होता कुछ नहीं। कि मेरे दादा देह ही का दादा जन्म भगवान हुआ, है। उसका तो आयुष्य बोलते थे कि मैं किसी दादा का भी भगवान देखो, नहीं हूँ। राम भगवान, कृष्ण समझा भगवान, तो महावीर उनको दादा भगवान भगवान समझते थे, शंकर खुद बोलते भगवान। थे जो शरीर कि का दादा भगवान तो आयुष्य ऐसे भतीजा के निमित्त महावीर भगवान का दादा 72 सबको years तो भगवान जुड़ा जुड़ा था, दिया आयुष्य यानी कि था। दादा भगवान सब पहले बाहर आया। जमानों में पर राम वो और क्या बताते कृष्ण थे भगवान के टाइम अंदर पे जो प्रकट 500, हुआ 700, 1000 सो का परमात्मा आपके उनके अंदर हिसाब भी से। कृष्ण भगवान है, राम काल के है, हिसाब महावीर से। है, वही दादा जिसका भगवान जन्म जन्म होता है तो वो भगवान वो का भगवान जन्म किसको ऊपर बोलते से हैं? नहीं टपके, माँ के पेट शरीर को से भगवान वो बोलते जन्म हैं हुआ कि अंदर भगवान आत्म तत्व को भगवान बोलते हैं। महावीर भगवान की दादा माता भगवान ने दूसरा दूसरी माता बात थी, की, शरीर कृष्ण कैसा है? भगवान की देवकी जन्म हुआ उसका विनाश होगा। तो ऐसे सभी भगवान क्या है? माता अविनाशी है, उसका तो विनाश जिसका होता जन्म हुआ नहीं। देह उसका का आयुष्य जन्म कर्म हुआ। के हिसाब से उसका आयुष्य का आयुष्य किसी का खत्म भी नहीं देखो, होगा। राम भगवान, और भगवान का तो भगवान, जन्म ही नहीं महावीर होता है, भगवान 24 और मरण भी नहीं होता है। ऐसे तो अजर शरीर अमर, का ऐसा आयुष्य अविनाशी महावीर तत्व भगवान को का हम 72 भगवान years कहते। सभी यह का जीव आयुष्य मात्र था। में जो अविनाशी पहले तत्व जन्म है, जमानों में शुद्ध राम और चेतन है, कृष्ण भगवान के वो टाइम पे भगवान सब 500, 700, 1000 साल भगवान का आयुष्य था। मृत्यु नहीं होता है उनके हिसाब से तो भगवान की डेफिनेशन है काल के हिसाब से कि अंदर जो आत्म तो जिसका तत्व को जन्म दादा होता है भगवान, वो खुद वो समझाते भगवान थे। का जन्म मैं भी अंदर ऊपर से बैठे नहीं हुए करते। दादा माँ भगवान के का पेट असीम से जय का वो जन्म हुआ। मैं भी बोलता हूँ भगवान और आप भी आपके अंदर महावीर बैठे भगवान हुए की भगवान माता का कृष्णा माता थी, जैसे दादा भगवान का कृष्ण भगवान बोलेंगे की देवकी तो आपके थी। अंदर भी परमात्मा को पहुंचे। तो ऐसे सभी भगवान के माता पिता थे। भाई साहब ने तो जिसका जन्म के हुआ हिसाब से प्रश्न उसका पूछा आयुष्य मैंने, कर्म के वितराग हिसाब से उसका जरा आयुष्य खत्म मैं तो नहीं हिंदी होगा। में, और भगवान का बोल तो सकता जन्म ही हूँ। नहीं होता है, थोड़ा इंग्लिश हार्ड है मेरे मरण लिए। भी नहीं होता, इसलिए ऐसे अजर अमर वितराग ऐसा यानी राग अविनाशी द्वेष तत्व जिसका को राग द्वेष भगवान चला कहते गया, हैं। सभी उसको जीव वितराग मात्र में जो भगवान बोलते हैं। अविनाशी तत्व या है, राग द्वेष चला शुद्ध गया। चेतन है, तो वो पहले भगवान राग शब्द जाता है। है, यानी कि भगवान का अच्छा, मृत्यु थोड़ा नहीं होता ऐसा है। ऐसा होता है भाई साहब बैठे। भगवान की डेफिनेशन ऐसी थी। आगे आ जाओ। अंदर जो आत्म तत्व आगे को दादा चेयर भगवान खाली है। वो खुद समझाते थे। आ सके तो मैं आ भी जाओ। अंदर बैठे हुए दादा भगवान का पहले असीम जय जयकार मैं भी द्वेष बोलता चाहता हूँ। है। और अभी आप तक द्वेष भी रहा। आपके अंदर अभी बैठे तक- हुए अभी तक भगवान द्वेष का है कि द्वेष चला जैसे जाए। दादा भगवान का असीम जयकार फिर बोलेंगे धीरे-धीरे वितराग तो होने आपके की अंदर भी शुरुआत परमात्मा को पहुंचेगा। राग द्वेष भाई जाने साहब के ने बाद संपूर्ण वितराग वितराग के हिसाब से भगवान प्रश्न 24 पूछा तीर्थन करो। वितराग भगवान को जरा मैं तो हिंदी से में पहचाना जाए। बोल सकता हूँ। और दादा थोड़ा इंग्लिश भगवान हार्ड है मेरे लिए। खटपटिया वितराग, इसलिए इनकी वितराग यानी राग रह गई। द्वेष, जिसका वो राग द्वेष चला गया 356 डिग्री, उसको और वितराग भगवान बोलते हैं। 360 क्या? कंप्लीट राग द्वेष चला गया। पूरा वर्तुल आता है ना गोल, तो पहले 360 राग जाता है डिग्री। उसमें दादा अच्छा, भगवान थोड़ा बोलते ऐसा थे, ऐसा होता है भाई साहब बैठे। हमें दिक्कत आगे आ जाओ, अधूरा है ना। 4 डिग्री। आगे 56 खाली है। संपूर्ण वितराग नहीं हुए, आ सके तो आ जाओ, ऐसा बताते थे। आपने पूछा ना पहले वितराग का क्या मीनिंग? द्वेष जाता है, मैं सोचा वित चलो द्वेष बता होता दूं। है, वित एंड और वित वितराग द्वेष यानी होने के द्वेष लिए चला जा। ये मनुष्य अवतार फिर मिला। धीरे धीरे वितराग होने की शुरुआत होती है। राग द्वेष निकालने के लिए जाने मनुष्य के बाद अवतार संपूर्ण वितराग भगवान 24 तीर्थंकरों वितराग आपको जो कोई भगवान क्वेश्चन है तो पूछना साथ साथ से पहचाना जाए। और दादा भगवान खटपटिया वितराग, इनकी उनकी खटपट रह गई, इनकी वो 356 डिग्री, और वितराग भगवान 360 कंप्लीट। क्वेश्चन में थोड़ा जनरल पूरा वर्तुल आता है ना, गोल गया था मैं। 360 अहिंसा परमो धर्म, दादा भगवान बोलते भगवान थे, महावीर ने क्या बताया? हमें अहिंसा पूरा परमो अधूरा धर्म। है 4 डिग्री। 356 संपूर्ण वितराग नहीं हुए, 5 महाव्रत ऐसा बताते थे। आपने भगवान पूछा ना वितराग महावीर का ने क्या मीनिंग है, तो जो मैं सोचा बताया। चलो बता दूं। और वितराग होने के लिए ये उसमें मनुष्य अवतार अहिंसा, मिला। अचौर्य, चोरी नहीं करना, राग द्वेष अहिंसा निकालने यानी के लिए हिंसा नहीं मनुष्य करनी। अवतार मिला है। अपरिग्रह, जो परिग्रह से भी छूटना है। आपको जो कोई क्वेश्चन है तो पूछना साथ साथ में। और ब्रह्मचर्य, सत्य, पहले सत्य आता है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
ऐसे 5 महाव्रत क्वेश्चन में थोड़ा जनरल महावीर भगवान ने गया था मैं। अहिंसा परमो धर्म, उसमें भगवान महावीर ने क्या अहिंसा बताया? परमो धर्म। अहिंसा परमो तो धर्म। हमें और हिंसा 5 महाव्रत किसको हम मानते? महावीर ने सूक्ष्म और जो बताया, जो स्थूल हिंसा होती है किसी को, हम उसमें अहिंसा, जीव जंतु को मारते हैं, अचौर्य यानी कि जान चोरी नहीं कर अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं मारते करते हैं। और कभी तो मच्छर को भी जान से जानबूझ के मारते हैं, मगर हमारी जानकारी से भी हमें और काटता है मच्छर। ब्रह्मचर्य, सत्य तो हम जानबूझ के भी मारते हैं। सत्य, अनजान में भी अहिंसा, मारना वो अलग है, अचौर्य और जानबूझ के भी मारना और अलग है। तो आप मच्छर ऐसे को 5 अनजान में महाव्रत मारते हैं कि जानबूझ के मारते हैं? महावीर भगवान ने वो सबसे बड़ा उसमें अहिंसा कोई तो वो परमो रैकेट रखता है। इंडिया में तो तो हमें हमें देखा, इधर रैकेट नहीं दिखा है, और यानी कि बहुत जगह जाना नहीं होता है। हिंसा और रैकेट किसको हम मानते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं ना, सूक्ष्म ऐसा और रैकेट स्थूल। आता है, तो उससे स्थूल हिंसा टेनिस होती खेलते है, हैं, किसी को बैडमिंटन हम खेलते हैं, ऐसे छोटा रैकेट आता जीव है। जंतु को मारते हैं। तो जैसे मच्छर यानी कि आए जान और रैकेट रैकेट ऐसे घुमा देते, तो टर्न से नहीं मारते, वो मारता मारते आवाज भी आता है। कभी-कभी तो मच्छर को भी जान से जैसे उसको करंट जानबूझ जानबूझ के के मारते हैं, मगर हमारी जानकारी से भी मर जाता है, हमें काटता है। दादा मच्छर। भगवान ने बताया आप किसी तो भी हम जानबूझ जीव के को बना बना नहीं नहीं सकते, उसको अनजान मारना में बहुत भी जोखिम है, मारना जोखिम वो है। अलग है, और और जिम्मेदारी जानबूझ के भी मारना अलग। तो आप मच्छर को अनजान में मारते हैं बहुत कि जानबूझ बुरा के फल मारते है। हैं? मगर हमें फल मालूम नहीं है, कौन सा फल भुगतना पड़ेगा। कोई कोई तो वो हिंसा रैकेट से। रखता है। इंडिया कोई में तो कॉकरोच बहुत देखा मारते है, हैं, इधर रैकेट किचन नहीं में। देखा है, यानी कि बहुत जगह जाना नहीं होता है। कॉकरोच होता आता है, और रैकेट उसको निकाल देते हैं वो कि मारते हैं। बैडमिंटन खेलते हैं ना, कोई कोई मारते भी ऐसा है, रैकेट कोई कोई निकालते हैं। तो उससे चुआ को भी मारते हैं। टेनिस खेलते हैं इंडिया में, ऐसे छोटा रैकेट आता है। पांजरा रखना और अंदर जैसे आ मच्छर गया आए है और और हम रैकेट ऐसे घुमा देते हैं। खेत में के दूसरे दूर वो नदी तालाब में दूर आवाज भी आता है, और कोई जैसे उसको करंट लगा ना, ऐसा दूर छोड़ के आते वो वो अच्छी बात है, मर जाता है। मगर अभी तो क्या वो तो पेड़ दादा जैसे भगवान ने होते हैं। बताया आप किसी वो भी जीव चिपक को जाते बना पेड़ नहीं में। सकते, ऐसा? उसको मारना बहुत बहुत जोखिम है, उधर जोखिम है। सब लोग बहुत जिम्मेदारी है। पेड़ से निकल चिपके ने तो निकल नहीं जाएगा, इसका बहुत उधर ही बुरा मर फल है। जाएगा। तो मगर हमें फल जीव मालूम हिंसा, नहीं है, कौन सा भगवान ने फल भुगतना पड़ेगा। जितनी हिंसा ज्यादा से। हिंसा, कोई कॉकरोच तो ये मारते माइंड हैं, किचन पे में आवरण आएगा। माइंड अपना कॉकरोच अच्छा होता है, यादगिरी भी तो आप नहीं रहेगी, उसको अच्छा निकालते चलेगा भी मारते नहीं। थे। और उसका कोई फल कोई मारते भी है, कोई कोई चाहे ये अवतार में चूहा को दूसरे भी अवतार मारते में हैं। ऐसा आएगा। इंडिया में हिंसा, वो पांजरा रखना और अपना अंदर डेवलपमेंट आ गया, आवरण आएगा। खेत में कुछ कि याद दूसरे शक्ति भी दूर कम हो जाएगी, वो नदी तालाब कुछ में मानसिक खार रोग लेके भी हो सकता है। क्या नहीं हो उधर सकता है, वो कुछ दूर तो छोड़ के आते वो अच्छी बात है। भगवान मगर ने अभी तो क्या वो पेड़ जैसे ये स्थूल हिंसा, वो चिपक जाते और पेड़ सूक्ष्म में। हिंसा ऐसा हमें बानी होता से है। किसी को दुख उधर देके, तो सब मन लोग से दुख वो देते, पेड़ से निकल चिपके ने तो निकल नहीं, बानी से जाएगा। दुख देते वो तो सूढ़ी उधर आ ही मर जाएगा। और सूक्ष्म तो माइंड से। तो ये जीव तो हिंसा, ये भी हिंसा है। भगवान ने जितनी ज्यादा जीव को हिंसा, मारना तो हिंसा तो है। ये माइंड, मगर पे आवरण आएगा। मनुष्य को माइंड भी अपना दुख अच्छा देना, यादगिरी भी नहीं रहेगी, अच्छा माइंड, चलेगा बॉडी भी और नहीं। स्पीच, 3 और वेपन से इसका इसका फल चाहे ये अवतार हथियार है में ना, कि दूसरे अवतार में ऐसा आएगा। माइंड, बॉडी और हिंसा। स्पीच ज्यादा किससे अपना हम डेवलपमेंट पे हर्ट करते हैं आवरण दूसरे आएगा। को। कुछ याद शक्ति भी कम हो जाएगी, वाचा, मानसिक रोग भी हो सकता है। वाणी, क्या नहीं हो सकता है, वो दिखती है। तो और काया भी है ना साथ में। भगवान ने माइंड, बॉडी, बॉडी मीन्स काया, स्थूल हिंसा, बॉडी और से भी सूक्ष्म हिंसा दुख देते ना, हमें बानी से किसी को दुख देते, मन से झगड़ा नहीं दुख कर देते, यानी कि मारामारी होती है, कोई वो हाथ बानी से दुख पाँव, देते, वो सुड़ी आ गया क्या नहीं होता और है। सूक्ष्म तो माइंड लकड़ी से भी होती है, हाथ से भी तो होती है। ये भी स्थूल हिंसा है। और सबसे बड़ी हिंसा जीव जंतु को मारना तो माइंड, हिंसा बॉडी, है। स्पीच में कौन सी? तीनों में मगर से मनुष्य को भी दुख देना। माइंड, माइंड, क्यों बॉडी माइंड? और स्पीच वो दिखता तीन तो वेपन नहीं से, है, हाथ से मारते हम, बानी से हथियार झगड़ा है। करते हो तो दिखता है। माइंड, बॉडी और स्पीच। माइंड ज्यादा किससे विचार, हम
मैं हट करते देख लूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वाचा मेरे अभी लाग में तो आओ एक दिन। बोलता नहीं, वो दिखती है, तो बोलता है सामने तो और अच्छा काया है, भी है ना साथ में, मगर माइंड में body- बॉडी मीन्स काया। मन की हिस्सा सबसे बड़ी। बॉडी से भी दुख देते ने, तो 3 प्रकार की झगड़ा नहीं हिंसा, करते, माइंड यानी कि मारा मारी होती है। कोई हाथ तो भगवान ने पाँव, बताया क्या क्या नहीं होता है हिंसा हिंसा से भी होती है, हाथ से ऐसी भी होती चीज है, थोड़ी हिंसा। और सबसे बड़ी में हिंसा माइंड उसका बॉडी स्पीच में कौन सी? माफी तीनों में से मन में किसी के लिए बुरा विचार आया, माइंड वो परमात्मा क्यों को माइंड मानते हैं, वो दिखता तो उसको नहीं है, याद हाथ से करके मारते हम बानी से शाम झगड़ा को करते सोने हो के तो पहले दिखता है, तुरंत विचार आवे, फिर माइंड विचार ऑन दिस मैं स्पॉट तेरे को देख लूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बानी तू भी मेरे अभी लाग में तो आओ एक नहीं दिन। बोलने की है, कठोर बोलता वाणी, नहीं, तंतीली वाणी, कोई बोलता है सामने तो पहुंचे अच्छा ऐसी है, बानी, मगर मन हे में भगवान हमें नहीं बोलने की, आप मन ऐसे की मुझे हिस्सा शक्ति सबसे दो। बड़ी। मगर जब निकल जाती तीन है प्रकार की हिंसा, तो हम ऐसे माइंड, जागृत बॉडी, रहना है, जागृति तो पूर्वक भगवान ने बताया हमारी गलतियां हिंसा देखना है। ऐसी चीज ये है, वाणी ऐसे निकल गई, किसी ये वीकनेस हो है, गई, किसी का तो अपमान उसका हो गया, माफी मांग लेने का, किसी मन की में निंदा कुटली हो किसी के गई, लिए बुरा विचार आया, निंदा हो वो जाती है। परमात्मा को आप मानते किसी को हैं, हम कैसे भी उसको तरह याद से करके अपमान कर दिया, हम शाम तेरी को मेरे सोने के पहले बानी से तो सब होता है, विचार आवे। महाभारत युद्ध बानी से हुआ ने, ऑन दी स्पॉट अंधे का अंधा साइट ये जो माफी शब्द मांगा। आया, बानी तो भी द्रौपदी हमें ने ऐसा नहीं बोलने की है, कठोर वाणी, तंतीली वाणी, अंधा किसी को सबको दुख दिखता पहुंचे नहीं ऐसी है। बानी, तो हे महाभारत भगवान को हमें नहीं बोलने की, आप बानी ऐसे से मुझे क्या नहीं शक्ति होगा। दो। तो ऐसे नक्की मगर करने का जब निकल जाती है जो तो हम ऐसी जागृत रहना है, जो निकल जाती है कठोर जागृति पूर्वक किसी को हर्ट हुए अंदर, तो मुझे हमारी रुजु गलतियां रुजु देखना है, बानी बोलने की, ये शक्ति बानी दो। ऐसे निकल गई, किसी को हर्ट न हो, किसी को हर्ट हो ऐसी गई, बानी किसी मेरे का से अपमान हो गया, निकले, किसी की निंदा कुटली हो गई, काया निंदा हो से जाती है ना, किसी मैं को हम किसी कैसे को भी तरह से अपमान कर मेरा दिया, व्यवहार ऐसा नहीं होना तेरी चाहिए। मेरे की बानी से तो सब किसी भी होता है। तरह से किसी को महाभारत हर्ट न युद्ध हो, बानी से हुआ ना, और दुख न हो, अंधे का अंधा, ऐसा मेरा शब्द आया व्यवहार होना चाहिए। तो द्रौपदी ने ऐसा बोल निकल गया, तो भगवान ने बताया कि अंधे आपको का जो अंधा दुख आता है, दिखता नहीं है, तो आपने महाभारत किसी हो को गई। दुख दिया है, बानी से क्या नहीं होगा, मनोवचन काया से, तो ऐसे तो नक्की दुख करने आएगा। का मेरे आपने जो हे मनोवचन भगवान, काया से जो भगवान को दूसरे को मेरी सुख बानी दिया है, जो निकल जाती तो है, सुख कठोर, आएगा। संतीली, किसी को हर्ट हुए, वो पाप तो और मुझे पुण्य मृदु रुजु और कुछ बानी नहीं है, बोलने की शक्ति। आपने सुख किसी देते, को किसी हर्ट को न हो, पुण्य ऐसी होता बानी है। मेरे से आप किसी को दुख निकले। देते हैं तो उसको पाप बोलते हैं। और ये पाप पुण्य का हिस्सा काया से मैं किसी अपने को शरीर के साथ मेरा कर्म के व्यवहार साथ ऐसा जुड़ा नहीं है, होना जन्म चाहिए, से मृत्यु तक किसी भी तरह से पिछले भव में जो कर्म हर्ट किए न हो, उसकी यह दुख अवतार न न हो, भुगतान आती है। ऐसा और मेरा भुगतान के साथ व्यवहार साथ होना नया कर्म भी बनता है। तो भगवान ने बताया कर्म की गति कि आपको न्यारी। जो दुख आता है, जो करेगा वो पाएगा। तो आपने किसी को दुख दिया है, जो कर्म आपने जैसे भी मनोवचन किए, काया से करेंगे, दुख आएगा। आपने जो आपको ही मनोवचन काया से भुगतान दूसरे करना को पड़ेगा। सुख दिया है, तो भगवान तो सुख आएगा। यू आर होल एंड सोल, पाप और पुण्य फॉर योर सेल्फ, नो बड़ी और कुछ नहीं है। आप सोच समझ आपने सुख से देते जागृति किसी को, के साथ पुण्य होता है। इतना नक्की करना, आप लास्ट किसी को टाइम भी दुख देते बताया हैं, था, तो उसको मेरे मनोवचन पाप काया से बोलते हैं। किसी भी ये पाप जीव पुण्य का मात्र हिसाब को किंचित मात्र अपने भी शरीर के साथ दुख न हो, कर्म न के हो, साथ न हो। जुड़ा रहता ये है। सबसे जन्म बड़ा से धर्म है मृत्यु तक। और पुरुषार्थ पिछले भव में जो कर्म किए उसकी सभी यह धर्म अवतार में देखो, भुगतान आती है। किसी को और दुख भुगतान देना के साथ वो साथ धर्म नया है, कर्म भी और किसी को सुख देना बनता है। वो ही धर्म है। ये कर्म की गति न्यारी, जो करेगा और जो वो कोई पाएगा। हमें दुख दे जाता है, जो कर्म आपने जैसे भी किए, वो क्या है? करेंगे, वो आपको है? ही भुगतान करना हाँ। पड़ेगा। तो भगवान तो बोलते
यू आर होल एंड सो कोई अगले जन्म का कर्म का फल उन्होंने ऐसा बता दिया, मैं समझ गया। आप सोच आपने समझ किया हुआ से कर्म का फल जागृति के वही साथ बताते हैं ना आप, इतना जो जो करना कर्म लास्ट किए टाइम भी बताया पूर्व था में, उसका मेरे फल है। मनोवचन का ऐसे और किसी कोई भी जीव मात्र बराबर है भाई साहब। किंचित मात्र भी महावीर भगवान ने वही बोला ना? न हो। हाँ, ये कृष्ण भगवान ने वही बोला, राम भगवान ने, सभी धर्मों में जो करेंगे पिछले बहु में सभी जो धर्मों में कर्म देखो किए उसका फल, किसी को दुख देना भोगतने के लिए ये अवतार किसी में, को सुख देना वो ही धर्म है। मगर मानते हैं कि और नहीं जो मानते, कोई वो बड़ा प्रश्न हमें है। दुख दे जाता है वो क्या है? एवरी टाइम तो नहीं मानते कि याद है ख्याल में नहीं आता। नहीं, बाद में ख्याल में हाँ। आवे कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझ में कोई अगले हमें जन्म का कर्म का फल, ये समझदारी जो प्राप्त हुई है अपने किया हुआ मेरे कर्म का वही फल बताते से हैं। मैं जो मुझे कर्म किए भुगतान है, पूर्व में मुझे भुगतना उसका पड़ता फल है। है। मेरे और कोई- पिछले कर्म मैंने बराबर है जो भाई भी साहब। सुख दुख दिया है, महावीर भगवान ने वही बोला ने, तो अभी मुझे भुगतान सुख, कृष्ण दुख भगवान किया। ने वही बोला, सुख राम का भगवान भी ने, भुगतान सभी धर्मों ने जो पर सुख का करेंगे भुगतान पिछले नहीं बहु में बोलते। जो कर्म भोगवटा किए, बोलते हैं, सुख उसका का फल भोगतने के में लिए कोई ये भोगवटा होता है। तो जैन परिभाषा में उसको बोलते हैं साता वेदनीय, मगर मानते हैं और कि नहीं सुख को, मानते, वो बड़ा प्रश्न और है। दुख को अशाता वेदनीय, तो वेदनीय दोनों में कॉमन है, मगर सुख का जो भोगवटा बाद में ख्याल है में आवे तो वो कोई दिक्कत वेदनीय नहीं नहीं है। लगता है, मगर समझ में और दुख आता है वो वेदनीय लगता है, बस इतना ही फर्क है। समझदारी जो प्राप्त हुई है कि मेरे तो कर्म का ज्ञान फल से यानी कि मुझे भुगतान है, समझ मुझे भुगतना पड़ता है। मेरे पिछले ज्ञान कर्म यानी कुछ नहीं, मैंने आपकी जो भी सही सुख समझ दुख दिया है वो ज्ञान की माता है, तो अभी मुझे सच्ची भुगतान सुख दुख की आती है। सुख तो का भी भुगतान ये पर सुख का हम भुगतान समझदारी भोगवटा होनी बोलते हैं चाहिए। सुख का, मेरी समझ में पक्का हकीकत हो गया में वही ये भोगवटा है। मुझे जो दुख जैन सुख परिभाषा आएगा, में उसको बोलते हैं मेरा साता पिछला वेदनीय का कर्म का फल है। और सुख को, हम और कैसे रहेंगे दुख को अशाता दूसरे के साथ वेदनीय, कोई आपका वेदनीय अपमान दोनों में करेंगे, कॉमन है, मगर सुख का जो दुख भोगवटा देके है कुछ उदय वो कर वेदनीय वैसा नहीं लगता है, तो आपको वो और निमित्त दुख दिखना आता है वो वेदनीय लगता है। उसने बस इतना ही किया, फर्क है। ऐसा आ जाएगा, मगर तो हम ये ज्ञान की माता जो यानी कि समझदारी प्राप्त हुआ, समझ, ज्ञान यानी कुछ नहीं, ज्ञान यानी कुछ समझ, नहीं, आपकी सच्ची सही समझ को समझ ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान और की उल्टी माता है, समझ को सच्ची अज्ञान समझ बोलते हैं। तो सही समझ ये भगवान ने क्या बताया? भगवान तो समझदारी कि मैं होनी चाहिए, मेरा मेरी अनुभव समझ में पक्का जो हो आया गया कि वो मैं मुझे सही जो समझदारी आएगा, सही ज्ञान आप मेरा मेरा पिछला प्रदान करता हूँ का कर्म अर्जुन का को फल भी है। कृष्ण भगवान ने हम सही ज्ञान कैसे प्राप्त कराया। रहेंगे दूसरे तो के साथ? जो भगवान हो गए उसको आपका अपमान करेंगे, ज्ञान मार्ग दुख दिखाया, देंगे, कुछ सही सही सच्चा सच्चा रास्ता दिखाया, तो आपको सही वो सच्ची निमित्त निमित्त दिखना दिखाई। उसने तो जब किया हम ये मानते हैं ऐसा आ कि जाएगा, मैं, मगर सामने हम वाला ये जो ज्ञान भी की माता जो कुछ निमित्त है, समझदारी करता नहीं हुआ, है। ज्ञान और यानी निमित्त कुछ नहीं, हमेशा निर्दोष होता है। समझ, सच्ची दादा समझ भगवान क्या को बताया? ज्ञान बोलते हैं। उन्होंने समझ और क्या उल्टी दी? समझ ये को जगत पूरा अज्ञान बोलते निमित्त हैं। है, निर्दोष है। तो सही मेरे समझ भगवान कर्म ने के क्या उदय बताया? से मुझे सुख भगवान मिलता को बोलते सामने वाला जो कि मैं है वो निमित्त निर्दोष। मेरा अनुभव में जो आया वो मगर मैं मेरी सही बुद्धि समझदारी क्या सही समझी ज्ञान आपको, मैंने तो उसका प्रदान बिगाड़ा करता नहीं। अर्जुन को भी कृष्ण और उसने भगवान मेरा ने जेब सही काट ज्ञान लिया, प्राप्त कराया, मेरी जमीन ले ली, तो वो नुकसान जो किया, भगवान हो वो गए, नुकसान किया। उसने सही तो ज्ञान conflict होता है ना थोड़ा बहुत, मार्ग दिखाया, ये अवतार में आपने सही कुछ सच्चा नहीं किया। रास्ता तो दिखाया, पूर्व में सही किसी उसकी सच्ची जमीन समझ बचा ली, दिखाई, अपनी मिल्कत बचा ली, वो जब दिखती हम नहीं है। ये हम मानते हैं कि मैं पूर्व जन्म का कर्म सामने का वाला फल जो भी कुछ ये अवतार निमित्त है, करता नहीं है, और निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। तो दादा भगवान क्या बताया? उन्होंने समझ क्या दी? ये जगत पूरा निमित्त आपका है, विश्वकर्मा निर्दोष है। है।
वो भी पूर्व कर्म मेरे का कर्म के उदय से फल है सुख दुख आता है। पूर्व कर्म में सामने वाला जो पूर्व भव में जो जैसा कर्म मगर है उसके मेरी हिसाब से बुद्धि आयुष्य है। क्या समझेगी, कोई जन्म मैंने तो उसका मर बिगाड़ा जाता है, नहीं। कोई 2 साल के बाद और कोई उसने मेरा अपने जेब काट कोई लिया, 80-90 साल ले ली, वो नुकसान किया, जीते वो हैं। नुकसान किया, कोई 100 साल भी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना क्रॉस थोड़ा कर बहुत। देते, ऐसा भी मगर सुना होगा ये अवतार में आपने 105 कुछ नहीं किया। 110 तो पूर्व भव में कितनी उसकी जमीन पचा ली, कितनी मिलकर ये पचा आयुष्य ली, कर्म भी। वो दिखती नहीं है हमें। हमारा पूर्व का ये कर्म पूर्व फल। जन्म का कर्म का फल ये अवतार हाँ, है। बोलिए। उनकी जो लंबा आयुष्य यानी कि पूर्व का उसका भावना होगी, वो आपका आयुष्य कर्म है ना, बाकी वो भी पूर्व कर्म का फल हिसाब है। किताब लंबा जितना पूर्व बाकी कर्म होता में है, पूर्व जब भव में आयुष्य जो खत्म जैसा होता है है तब उसका पूरा कर्म है का उसके हिसाब से आयुष्य है। लेन देन का कोई हिसाब जन्म पूरा नहीं तुरंत होगा मर नहीं जाता है, कोई 2 साल के तब बाद तक आयुष्य accident में कोई उसका 80-90 साल रहता है, तक जीते पूर्व हैं। का कर्म का और और नया नया साल कर्म में भी जो बनता है उसका तो क्रॉस कर देते हैं, भोग ऐसा भी में सुना था। होगा आपने 105 110 यानी कि आयुष्य दूसरा कर्म में उसका भोग ये आयुष्य कर्म भी तो उसका लंबा चौड़ा हाँ। हिसाब होगा। पूर्व का कर्म फल है। ऐसे तो दादा भगवान बताते थे पाप बोलिए। पुण्य का हिसाब से आयुष्य होता है और जन्म से उसका उनकी जो कितना लंबा साल आयुष्य जीने का पूर्व है, उसका भावना होगी, उसका आयु वो पर नहीं हिसाब श्वासोश्वास किताब उसका लंबा कितना बाकी होगा। पूरे साल में कितना हिसाब हिसाब किताब किताब लंबा हम जितना लेने बाकी वाले होता है ना, जब आयुष्य खत्म होता वो- है ने तब उसका पूरा तो कर्म का जैसे साइंटिफिक मैथमेटिक्स का होता हिसाब है कि पूरा नहीं होगा ने 1 घंटे में इतना तब श्वास तक आयुष्य 24 घंटे में उसका इतना होगा रहता दिन में। तो पूर्व का कर्म 1 वीक का। में इतना होगा, और नया एक कर्म महीने जो में बनता इतना है होगा, उसका एक तो साल दूसरे में भाव इतना में होगा। भुगतने तो का आयुष्य सालों यानी पे कि नहीं है, आयुष्य ये अपना श्वासोश्वास की भोग रिदम आता है। उसका के लंबा पे चौड़ा आयुष्य हिसाब होगा। है। मैं 1 करोड़ के ऐसे 10 तो करोड़ दादा के 25 भगवान करोड़ के बताते अगर थे, जो नक्की होता पाप है ना, पुण्य का हिसाब से आयुष्य कोटा होता है। बोलते हैं और एक जन्म से कोटा फिक्स है। मगर उसका कितना साल आयुष्य अपना जीने का है, श्वासोश्वास पे होता है, उसका आयु हम किसी- पर नहीं तो श्वासोश्वास बात कितना निकली तो थोड़ी पूरे साल दादा में भगवान ने बताई कितना श्वासोश्वास हम लेने वाले जब जब हम चोरी करते, वो छल कपट करते, दूसरे का कुछ तो छीन लेते, जैसे उससे साइंटिफिक कम मैथमेटिक्स बुद्धि होता है कि वाले एक- होते तो हम मेरी एक ज्यादा घंटे में इतना बुद्धि से श्वास उसको लेके 24 उसके घंटे पे में इतना कुछ न होगा, कुछ गलत काम एक दिन में। करते, तो तो हमारी आयुष्य एक वीक में श्वासोश्वास इतना होगा, जो एक रिदम महीने है में ना, इतना होगा, ज्यादा एक यूज साल होगा। में इतना होगा। तो तो आयुष्य आयुष्य सालों पे श्वासोश्वास नहीं पे है, है। ये अपने श्वासोश्वास की years पे रिदम नहीं है। उसका कोटा उसके पे पे आयुष्य है। मैं 1 करोड़ के 10 जैसे करोड़ के 25 हमें करोड़ के अबर जो जन्म हुआ, जो नक्की होता है ना, सबके कोटा अपना कोटा बोलते हैं, फिक्स है। फिक्स। मेरी आंखों की कोटा कोटा फिक्स है। चलेगा, बाल कितना मगर चलेगा, ये कब white होगा, आयुष्य कब अपना टाल पड़ जाएगी, श्वासोश्वास पे डिवाइड होता है। टाल पड़ गई, हम किसी तो उनका तो कोटा बात खत्म निकली हो गया तो बाल थोड़ी का। एक दादा भगवान ने कोई बताई छोटी थी उम्र बात। में 50 साल के ये अंदर जब भी हो जाता है, चोरी करते, ओ, हमें कटवाना छल पड़ता कपट है, करते, उनको दूसरे का कुछ छीन लेते, पूरी टाल है। कम बुद्धि तो बाल का भी वाले कोटा होते, तो हम मेरी ज्यादा इसको बुद्धि जल्दी से व्हाइट होना, उसके पे उम्र कुछ में। न कुछ गलत काम करते, तो हमें कान का आयुष्य कोटा और श्वासोश्वास सुनाई नहीं देगा, रिदम है ना, ज्यादा यूज हो जाता है। आंख का तो कोटा किसी या की आंख चली आयुष्य जाती है, श्वासोश्वास पे है, वो उसका कोटा खत्म नंबर हो ऑफ जाता है। ईयर्स पे नहीं है। एक दोनों नहीं उसका जाते, कोटा चली फिक्स जाती है, कोटा खत्म हो गया है, अभी क्या जैसे करें? हमें कोई डॉक्टर की जन्म भूल हो हुआ, जाती है, कुछ आंख में गिर सबके जाता कोटा है, वो बात अलग अपना है, कोई एक्सीडेंट फिक्स से है, मेरी आंखों की किस साल अपने आप ही चलेगा, कोई बाल रोग नया कितना आ चलेगा, जाता है। कब व्हाइट होगा, कब टाल पड़ बुद्धि का जाएगी, कोटा, जो हाथ हाथ का का कोटा, आगे पाँव टाल का पड़ गई कोटा, ना, तो उनका कोटा खत्म हो उनका, गया बाल का, चीक का, सब कोटा ही है। कोई छोटी उम्र में वो फिक्स है, 50 साल के अंदर भी हो जाता है, अपने तो पैसे का भी हमें कोटा कटवाना फिक्स पड़ता है, उनको चाहे डॉलर है पूरी रुपीस टाल है। है, तो कपड़े बाल का भी कोटा, फिक्स है, इसको जल्दी का व्हाइट कोटा होना, फिक्स है, पानी उम्र का में। कोटा फिक्स है। तो कितना कान का पानी आप कोटा पिएंगे पूरी जिंदगी में, सुनाई नहीं देगा,
इसलिए तो दादा भगवान बोलते हैं पानी पिया, आँख का कोटा रखना, किसी की आँख चली जाती है, जल्दी पी लो, ऐसे वो सा कोटा खत्म हो जाता है, निकाल दो। एक दोनों नहीं चलते थे, एक चली जाती है। मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोटा खत्म। अभी आपको पीने के लिए मिलता है, कोई डॉक्टर की बात, ऐसा भी वक्त होगा पानी भी नहीं मिलेगा, बात अलग है, आपका कोटा एक्सीडेंट के कुछ भी पैसा भी नहीं, अपने आप भी कोई रोग न आ जाता है। जूते का भी कोटा, उंगली का कोटा लाना है, लाओ अभी, हाथ का कोटा, पाँव का कोटा, फिर पिछली उम्र में मुंह का, जीभ का, स्पेक्स पहनते हैं, वो भी कोटा, वो फिक्स है। कपड़े का आ गया तो स्पेक्स का, पैसे का भी कोटा फिक्स है। आपको अजीब सा लगेगा, बात है डॉलर है रुपी से, ये ज्ञानी पुरुष। कपड़े का भी कोटा फिक्स है, लेके आए सब पानी का हिसाब से, कितना चलेगा हाथ पानी आप पिएगे पूरी जिंदगी में, नहीं तो पैरालिसिस होता है ना, हाथ पानी चलता ही नहीं, फिर रखना, ब्रेन में स्ट्रोक आता है, ऐसे फिर दूसरा ग्लास लाओ, ये निकाल, क्या क्या नहीं होता है, कैंसर होता है, किडनी का भी कोटा, किडनी आपको पीने के लिए मिलता है, दो फेल हो जाती, बाद में ऐसा भी वक्त होगा पानी भी नहीं मिलेगा, बाहर का तो दिखता है, अंदर तो कितनी पैसा भी नहीं मिलेगा, कटक कोटा, जूते का भी कोटा, सब कितना भी जूता लाना है लाओ, मशीनरी चलना, फिर पिछली उम्र में फर्स्ट अटैक में स्पेक्स पहनते हैं ना, वो भी 10 अटैक आया तो भी एक्सपायर नहीं होता, कपड़े का आ गया तो स्पेक्स का भी आ गया ना, तो सभी का आपको अजीब सा लगेगा कि आए बात, तो जितना जल्दी वापरना है, किसी को शौक होता है ना, लेके आए सब पाप पुण्य का हिसाब से, कितना चलेगा हाथ पाँव, शौक यार परिग्रह, जो नहीं तो पैरालिसिस होता है ना, एक हाथ पाँव चलता है, दांत भी गिर जाते हैं ना, चौकटा में स्ट्रोक आता है, आर्टिफिशियल दांत को चौकटा बोलते हैं ना, क्या क्या नहीं होता है, कैंसर होता है, किडनी का भी कोटा, किडनी एक मनुष्य होता है, ऐसे नहीं मिला, फेल हो जाती, लीवर फेल हो जाता है, अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, तो दिखता है, ये रूप रंग भी देखो सिस्टम है, किसको कोई काला, कोई गोला, कोई कद्रूपा, कोई अपंग, ये मशीनरी चलना से बाद में उसका भी कोटा है, फर्स्ट अटैक में भी एक्सपायर हो जाता है, क्या 10 अटैक आया तो भी एक्सपायर नहीं होता, तो सभी ऐसे कर्म, ऐसे कोटा, कोटा अपने आप अच्छा मिलता है, जो भी आयुष्य कर्म अपने आप, किसी को शौक होता है ना, शौक ज्यादा होता है तो जल्दी वापरते, कपड़े जूते, तीर्थन करो की बात तो अलग होती है, मौत शौक की आदत तो शरीर ऐसा होता है, मगर समझना, दांत भी गिर जाते हैं ना, चौकटा डालते, आर्टिफिशियल दांत को चौकटा बोलते हैं, वैसे नहीं कि ये जुड़ा हुआ है राग द्वेष पे है ना, आप किसी को दुख दे, मनुष्य होता है ऐसा नहीं मिला, सुख देगा तो सुख आएगा, कितने अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, कोटा मीन्स रूप रंग भी देखो, पाप पुण्य का हिसाब से आपका, कोई काला, कोई गोला, कोई कद्रूपा, जैसा आपका पाप का उदय, आज जनावर में जाना पड़ेगा, बाद में हो क्या है, इसका हाथ पग क्या क्या नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें कौन सी गति मिलेगी, देव गति में जाएंगे कि नरक गति में जाएंगे, जैसे कर्म चार पग में जाएंगे कि वापस मनुष्य में आएंगे, अच्छा मिलता है, भरोसा है, आयुष्य कर्म अपने आप, भगवान ने तो बता दिया, आप दूसरे का किसी का छीन लेंगे, चीटिंग करेंगे, कपट करेंगे, कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे, 2 पाँव से 4 पाँव में जाना पड़ेगा, नहीं कर्म के हिसाब से, राग द्वेष है नहीं, किसी को हेल्प करे, जुड़ा हुआ है राग द्वेष पे, गाली देंगे तो भी हेल्प करे हो, और दुख आएगा, सुख देगा तो सुख आएगा, किस तरह से मैं सुख, कोटा मीन्स के जन्म से पाप पुण्य के हिसाब से आपका कोटा नक्की होता है, सुख भी दिया, जैसा आपका पाप का उदय, और जनावर में जाना पड़ेगा, वो क्या है, और जबरदस्त क्रोध किया, हमें नहीं मालूम, हमें गांव के गांव जला दिया, गति में जाएंगे, कोई नरक गति में जाएंगे, प्रॉफिट नहीं, और दूसरे 4 पग में जाएंगे कि वापस मनुष्य में आएंगे, इतना नुकसान, भरोसा है, अपने को फायदा नहीं है, भगवान ने तो बता दिया, आप दूसरे का किसी का छीन लेंगे, चीटिंग करेंगे, कपट करेंगे, जो नुकसान पहुंचाएंगे, 2 पाँव से 4 पाँव में जाना पड़ेगा, शुद्ध चेतन आत्मा, और आपका कर्म ही आपकी भूलो ही, गाली देंगे तो भी हेल्प करी है, भगवान गाली नहीं सर, पूरी जिंदगी हमें भूलों से भटकना पड़ता है, सुख दुख, अपनी भूलों से देवगति में भी जाए, हमें और शारीरिक सुख भी दिया और आर्थिक दिया, थोड़ा थोड़ा और सुख वेदना आती, वापस मनुष्य में भी आ सकते,
और शारीरिक वेदना जबरदस्त तो समझ में आ क्रोध गया है। किया, जो गांव के गांव जला दिया, मानसिक वेदना, कोई भी मुनाफा प्रॉफिट नहीं, और दूसरे साइकिल- को इतना कोई तंग साइकिल किया, का पेशेंट होता है उसको मानसिक इतना वेदना नुकसान किया, कोई माइंड नहीं चलता, फायदा नहीं, वो साइकिट्रिक डॉक्टर के तो पास नर्स जाना जाती पड़ता है, है, उसकी याद शक्ति नहीं, एक मेंटल कर्म की हॉस्पिटल गति में में आना आनी पड़ेगा, यानी कि जो करेगा वो घर आप पे नहीं पाएगा, रख सकते उसको, तोड़ फोड़ भगवान करेंगे, कुछ नहीं करते भगवान, तो पता ही लड़का होगा लड़की क्या करे, शुद्ध चेतन आत्मा से जन्म हुआ, आपका कर्म दुनिया में ही, दिखते नहीं, आपकी धर्म मालूम भूलो नहीं। ही, बहुत सारे ऊपरी लोग है, भगवान मेंटल मेंटल वीकनेस होता है, वो हमें मन से भूलों ज्यादा दुख से से भटकना बहुत दुख पड़ता दिया है। सबको, अपनी भूलों से तो उसको हमें mental मन से दिया दुख, शारीरिक मानसिक Psychiatric आर्थिक पेशेंट बनेगा, वेदना आती है, बानी से दिया, शारीरिक वेदना तो समझ में आ गया है ना, कुछ न कुछ दिक्कत आएगी, और मानसिक वेदना काया से किया तो काया में दिक्कत आएगी, कोई साइकिल के पेशेंट होता है उसको मानसिक वैसा भुगतान आएगा, माइंड नहीं चलता है, किस तरह से किसी भावना से, किसी हेतु से, किसी कैसे तीव्रता से जाना पड़ेगा, आप दुख देते ऐसी ऐसी तीव्रता से, आँख का दुरुपयोग किया तो आँख चली जाएगी, लड़का होगा, कान का दुरुपयोग किया तो कान में कम सुनाई जन्म हुआ, हाथ का दुरुपयोग किया तो हाथ पे नहीं, दर्द मालूम नहीं मुझे, पाँव का दुरुपयोग किया, बहुत सारे लोग ऐसे माइंड का मेंटल वीकनेस होता है, तो मन से ज्यादा दुख दिया, बहुत दुख दिया सबको, तो उसको भगवान ने क्या बताया, दिया दुख, कि आप मनुष्य अवतार मिला है, बड़ा जंक्शन है, वहां से आप बानी से दिया तो उसका कंठ कुछ न कुछ दिक्कतें आएगी, वो काया से किया तो काया में दिक्कत आएगी, उसको ऐसा भुगतान आएगा, किस तरह से, किसी भावना से, किसी हेतु से, किसी कैसे तीव्रता से आप दुख देते, ऐसी ऐसी तीव्रता से, आंख का दुरुपयोग किया तो आंख चली जाएगी, कान का दुरुपयोग किया तो कान में कम सुनाई देगा, हाथ का दुरुपयोग किया तो हाथ बराबर नहीं चलेगा, पाँव का दुरुपयोग किया, समझ गया, ऐसे माइंड का मन वचन काया से एक कर्म पूर्व जन्म का जो अपने भाव किया है, कर्म किए तो उसका फल के हिसाब से क्या बताया, क्या क्रिया होती रहना है, बड़ा गलत एग्जाम्पल, वहां से आप ये चोर लोग हैं, चोरी करते, डाका डालते, घर तोड़ते, कि जो भी करते, रॉबरिंग करते, कि जो भी है, तो उसने पूर्व में लांच लेते, बुरे काम करते, उन्होंने पूर्व में भावना की थी, कर्म किया था, ऐसा मुझे ऐसे ही करके मेरा जीवन चलाना है, ऐसे ही करके जीवन चलाना है, तो उसके हिसाब से उसको, जैसे अपने माइंड है, अपने बुरा विचार नहीं करना है, तो भी आ जाएगा कि नहीं, बानी अच्छी बोलने की है, बराबर है, तो भी बुरी निकल जाती है कि नहीं, मन वचन व्यवहार से ये कर्म पूर्व वर्तन का जो अपने गलत नहीं करना है, तो कर्म हो जाता है, फल के हिसाब से आपको कैसे होता है, क्रिया होती रहती, पूर्व जन्म में गलत जो भी डाले है उसके हिसाब से कर्म फल भुगतना पड़ता है, घर ऐसी माने जो भी करते, ऐसी नियत बिगड़ेगी, रॉबरिंग ऐसा व्यवहार वर्तन होगा, तो उसने पूर्व में लांच होगी, बुरे आपके हाथ में नहीं है, उन्होंने पूर्व में कितने भावना की, कर्म किया, अच्छे विचार करना, ऐसा मुझे ऐसे ही करके मेरा जन्म का फल का हिसाब से भी विचार आता है, तो उसके हिसाब से वाणी निकल जाती, जैसे अपने माइंड पूर्व जन्म का अपने कर्म का फल है, तो भी आ जाएगा कि नहीं, वाणी तो अच्छी बोलने की है, अभी क्या करना है, बुरी निकल जाती है कि नहीं, दिस इनकरेक्ट व्यवहार अपना उसको करेक्ट करने, यानी कि वर्तन के गलत नहीं करना है, सब मेरी बात भी निकली हो जाता है कि नहीं, किसी को हर्ट हुई कैसे होता है, मैंने कि पूर्व जन्म को मार दिया, नहीं मानने का था, डाले नहीं मानने का था, उसके हिसाब से किसी को भी कर्म दवा नहीं छाटना पड़ता है, ऐसी दवा भी छाट दिया, ऐसी नियत हिंसा की, ऐसा व्यवहार और भी हिंसा की, जो भी ऐसी सोच 5 महाव्रत में वो आपके हाथ में नहीं, जो भी गलत किया, आप कितने भी चाहे तो माफी मांग, मुझे अच्छे विचार करना है, और फिर से ऐसी हिंसा, ऐसी भूल नहीं करे, तो पूर्व जन्म का फल का हिसाब से भी विचार आता है, ये पर्यूषण है, वतन हो जाता है, व्यवहार जैनों का है, निकल जाता है, अगर हम भी हमारी भूलों की माफी मांगना का फल है मेरे लिए, पर जो दिखता है वो
ये मनुष्य अवतार ही हमें भूलो क्या करना है, भागने के लिए कि दिस इज रॉन्ग, भूलो रेक्टिफाई के लिए, भूलो से मुक्त होने के लिए ये मनुष्य अवतार मिला है, वो सबसे बड़ा धर्म है। किसी को हर्ट हुई, ऐसा मैंने कुछ कॉकरोच को मार दिया, गलत को सही करना का था, किसी को भी वो अपना दवा नहीं छाटने की थी, अधर्म को धर्म में लाने का, वो जीव हिंसा सही समझ को धर्म की, जो भी 5 महाभक्त में आता है। धर्म की परिभाषा क्या है, तो हम माफी मांग, गलत समझ है और फिर से ऐसी हिंसा ऐसी भूल नहीं करो, उसको प्रतिक्रमण, वो सच्ची समझ पर्यूषण है कि प्राप्ति। त्योहार जैनों का है, अगर हम भी गलत हो जाएगा माफी मांगना। कल भी मैं लास्ट टाइम पर्यूषण था, उसमें क्या बताया था, ये मनुष्य अवतार ही गलती करते हैं, भागने की नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं आपको भूलों से मुक्त होने हो जाती है। ये मनुष्य वचन काया से वो सबसे बड़ा धर्म है। बिहेवियर के सोच के वाणी निकलती है, वो आपकी बस, गलत को सही करना। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल अधर्म को धर्म में लाने का और सही समझ को धर्म बोलते हैं। तो सही गलती है, विचार की परिभाषा क्या है, उल्टा आपकी गलत समझ है। तो भगवान ने क्या बताया, गलती किसको कहते हैं, वो सच्ची समझ जो हो जाती है, वो गलती नहीं है, मगर गलत हो जाएगा वो गलती का लास्ट टाइम एहसास करके उसमें क्या बताया था, रेक्टिफाई करना, क्या आप गलती करते हैं वो गलती नहीं है, जस्टिफाई करके भगवान जानते हैं आप प्रणाली करते कि हो जाती है। मन वचन काया से जो भी लास्ट टाइम एग्जांपल बिहेवियर के सोच के बाद हो गलती है, आपने आपकी गुस्सा क्यों किया, तो करना चाहिए। सो मेनी साइंटिफिक बोलना एविडेंस संजोग, तो वो गलती होता है, हो गया वो गलती नहीं करती है, मगर जाति का आपने व्यवहार लिया, प्रोटेक्शन किया, वो भगवान के। तो भगवान ने क्या बताया, और इस गलती किसको कहते हैं, कोई पूछे तो बोलना कि जो हो जाती है वो गलती नहीं है, मेरी नबड़ाई है, मगर हमें से मेरे ये भूल नहीं, वो गलती का ऐसी है भगवान एहसास करके उसको रेक्टिफाई करना बोलते, प्रायश्चित रेक्टिफाई नहीं करते वो गलती का। तो मनुष्य अवतार ये सभी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मिला है, और सभी गलतियों से सबसे बड़ी गलती है मैंने निपटाने के लिए। गुस्सा हो गया, कोई पूछे आपने और खुद की गलती दूसरे की गलती नहीं, तो करना चाहिए। हम बंदे हैं तो लोग सीधे नहीं होगी, बोलना पड़ता है। दूसरे की तो गलती देखना ही नहीं है, वो ऐसा भगवान ने तो गुस्सा हो गया देखने की है, वो गलती तो नहीं है की देखो, मगर गलती का आपने और जगत कैसा है प्रोटेक्शन किया निर्दोष से, वो अपनी गलती से पूर्व में जो किया है मेरी उसके हिसाब से माय वीकनेस चल रही है, मेरी नबड़ाई है, अपने भी निकल से मेरे ये भूल नहीं हो। मन वचन काया कैसा है, पर और पराधीन, उसको प्रति पर सकता प्रायश्चित बोलते। और तो मनुष्य क्या बोलते, ये सभी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मिला है, हमें किया सभी गलतियों से कर्म फल जो अभी ये मनुष्य मिटाने के लिए, ये कर्म फल मनुष्य के लिए पाप और पुण्य, खुद की गलती दूसरे की गलती नहीं। तो हम बंदे हैं, पुण्य का फल जो की गलती से हमें मिला है, दूसरे की तो गलती देखना ही करना है, ऐसा भगवान। तो क्या करने का, अगर देखने की है तो खुद की देखो, महसूस करने का, और जगत कैसा है को निपटाने का, निर्दोष से वो अपनी गलती से मनुष्य अवतार किया है, मैं कौन हूँ उसके हिसाब से उनकी गलती निकल रही, कहाँ से आया कहाँ जाने वाला भी निकल रही है, और मेरा सच्चा स्वरूप मन वचन काया कैसा है, अगर पर और पराता है पर सकता है, वो अति 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 दुर्लभ। धर्म क्या बोलते हैं, तो देव लोग भी मनुष्य अवतार पर सत्ता वाली जो सुना होगा कर्म, वो कर्म देव में देव लोग भी मनुष्य अवतार होता, क्या मनुष्य अवतार तो बड़ा जंक्शन है, पाप और पुण्य भोगने के लिए मिला है, और मनुष्य में भी आ तो ये पाप और पुण्य का फल जो मनुष्य अवतार में हमें मिला है, तो मनुष्य अवतार सार्थक करना है,
तो क्या करने का? गलती को हमें महसूस करने का, इन गलती को निपटाने का, उसका प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो। पर मनुष्य अवतार में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला हूँ और मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। अगर मनुष्य अवतार मिलता है वो अति 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 दुर्लभ, तो देवलोक भी मनुष्य अवतार झंकते हैं। ऐसा सुना होगा आपने कि देवलोक भी ऐसा मनुष्य होता है। मनुष्य अवतार तो बड़ा जंक्शन है, आप सिद्ध गति में जा सकते हैं और मनुष्य में भी आ सकते हैं और दूसरी गति में भी जा सकते हैं। हाँ, बहुत कम होता है जैसे, लेकिन अभी इंडिया के अंदर अभी भी हजारों लोग हर एक साल मरते। अफ्रीका के अंदर तो इतने मिलियंस अभी भी लोग मरते हैं अफ्रीका। उनको तो अभी मच्छर को नहीं मारेंगे तो मच्छर को, जैसे अभी कोविड हुआ, चूहे को नहीं मारेंगे, कोविड मतलब 5 मिलियन 600-700 साल पहले पूरी दुनिया में, अभी यूरोप के पूरे गांव के गांव बर्बाद हो गए। इसके कारण प्लेग से, चूहे से प्लेग हुआ है सर। अभी 20 साल पहले सूरत कैंसर प्लेग हुआ था। हाँ, 92 में। नहीं मारेंगे, वो पूरी दुनिया को खत्म कर, सूरज जाना बंद कर दिया। और जैसे रक्षा बंधन में सूरज आया तो लोग भाग कर दिया। मच्छर को नहीं मारेंगे तो वो मलेरिया से उसको पूरी दुनिया नहीं करेंगे। एक तरह की हिंसा ही है। यहाँ तो मलेरिया बैक्टीरिया को मारा, वायरस को मारा होता है, तो एक तरह से हिंसा ही इंडिया के अंदर। आपने जो कर्ज खाते हैं ना, कर्ज दही कर्ज खाते हैं, दही दूध का दही बनता है ना, उसमें कितना बैक्टीरिया होगा। हाँ, तो उसका दिक्कत नहीं है। एकेंद्रीय जीव अपने अनाज, गेहूं, चावल वो सब खाते हैं ना, एकेंद्रीय जीव है। नहीं तो आप जीव को जीव खाते, बिना जीव आपने पत्थर नहीं खा सकते। तो अपने वो जो भी सब्जी खाते, यानी कि जो दाल 92 में गेहूं, चावल, जो अनाज पकाते खेत में, वही हम खा सकते। पत्थर नहीं खा सकते, ये लकड़ा नहीं खा सकते। तो वो एकेंद्रीय जीव होता है। एकेंद्रीय जीव खाने से आपको हिंसा नहीं लगती है, यानी कि आपका जो आपने जो कर्ज खाते हैं, कर्ज दही जाता है, कर्ज खाते अनाज है ना, डांगर, उसमें कितना बैक्टीरिया होता है, जो भी वनस्पति नहीं है खाते, तो वो जीव एकेंद्रीय जीव अपने अनाज, मतलब एकेंद्रीय जीव है, वो सब खाते हैं, एकेंद्रीय जीव है। और जीव को जीव खाते जाता है, बिना जीव आपने पत्थर नहीं खा सकते थे। इसलिए उद्धव तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। वो आपको तो जो कौन सा जीव खाते कि हिंसा जो त्रास पाता है, आपसे डरता है, गेहूं, मच्छर, चावल, चींटी, जो अनाज पकाते खेत में, वो गिलोड़ी हम खा सकते, जीव जंतु पत्थर नहीं खा सकते, हाथ रखेंगे तो नहीं जाएंगे, उसको त्रास, तो वो एकेंद्रीय जीव होता है, हर्ट होगा। एकेंद्रीय जीव की हिंसा खाने से एकेंद्रीय का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो हम कितनी आपका जो 5% पुण्य उनको जाता है कोविड में, अनाज है ना, जो आता है, डांगर खेत सब आता है, गेहूं डालता है, सब जो भी वनस्पति जो हम इधर आने ही नहीं देंगे, तो वो जीव ही है, मगर एकेंद्रीय जीव है, उसकी ऊर्ध्वगमन होती है। और 5% तो मैं क्या बोलता हूँ अपने पेट में, आपको आंख से दिखता है, ऊर्ध्व अनजाने में हो गया, वो बात अलग है। आपको तो जो जानबूझ कौन सा जीव हमें की हिंसा जो त्रास पाता है, आपसे डरता है, मच्छर, चींटी, वो कॉकरोच मारो तो वो गिलोड़ी, जो भी रहेगा जीव जंतु, आप भगवान को भी रखेंगे तो उड़ जाएगा, भगवान भी त्रास को हिंसा, भगवान ने त्रास पाएंगे, हर्ट होगा, जो भी भगवान, तो जीव की हिंसा है। एकेंद्रीय का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पामते ऐसे तो हम कितनी इंसुलिन ली, त्रास पाते, इंसुलिन क्या दूध में जो बोलते बैक्टीरिया, पानी में भी जीव है, ये एंटीबायोटिक, ये उसके पानी ताया बोलते हैं, सब आता है, ये पानी है, सब उसकी नहीं लेंगे तो इधर आने ही नहीं देंगे। पानी का है जीव, उसका नाम, उसमें भी जीव है। कहाँ आपको वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, कहाँ हिंसा हो कि आपको आंख से लेता है, अनजाने में हो गया, त्रास नहीं पाते वो जीव,
धान चावल होते तो भाग जाते हैं चावल, गौ मच्छर कॉकरोच को तो त्रास नहीं खाते। वो चूहे अपने जीवन के लिए हम अनाज पानी चाहिए, नहीं मारो तो नहीं तो फल तो आएगा। उसमें भगवान को भी छोड़ा नहीं है, भगवान भी उसको हिंसा, भगवान ने बताया जो भी भगवान हुए अहिंसा परमो धर्म, किसी त्रास पामते वो जीव की हिंसा मत करो, त्रास पामते। ये दूध में जो कितने बैक्टीरिया होते हैं, पानी में भी जीव है, ये उसके पानी काया बोलते हैं, ये पानी है उसकी जीव, ये पानी काया जीव उसका नाम, उसमें भी जीव है। कहाँ आपको क्या प्रोटेक्ट रहना चाहिए, अहिंसा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ हिंसा होती है वो जान लेने का बस। जो त्रास नहीं पामते वो जीव, जैसे हम चावल होते तो भाग जाते हैं, चावल गौ चले जाते, उसको त्रास नहीं पामते और अपने जीवन के लिए अनाज पानी चाहिए ही। हाँ बहन जी कुछ पूछते थे। हाँ ये तो देखो पेट भरने के लिए तो लास्ट टाइम ही मैं बताया था, जो खेत में एग्रीकल्चर, जो गांव में अपना भारत देश खेती प्रधान देश है, वो उसका व्यवसाय यानी कि 50-60% खेती करते हैं, खेती प्रधान देश। तो उसमें खेत में क्या उतना चाहते हैं, उसको दवा भी छांटनी पड़ती नहीं, छांटनी पड़ती अनाज पानी पे जो भी उगाते हैं खेत में। मगर दादा ने क्या बताया था, भगवान ने क्या बताया, हिंसा तो हिंसा होती है। तो उनको बताया मेरे हाथ, ये मेरा धंधा बाप दादा का है, इतनी सारी 50 बीघा 25 बीघा जे कर बोलते, तो इतनी जमीन आया वारस में, तभी क्या तो जाने देखो पेट भरने की प्राइस भी बढ़ गई सब। लास्ट टाइम भी मैं बताया था। तो उसको खेत पे उसका जीवन निर्भर, गांव में तो भारत देश क्या बताया दादा भगवान ने कि भाई आपका खेत की उसका व्यवसाय है कि तो दवा छाटनी पड़ती है, 60 राजी खुशी से मत छाटी 60% और भावना कर खेती करते कि अवतार तो मेरा ये खेत का आया है, तो उसमें खेत में तो उसमें किसको हिंसा होती, दवा भी छाट। देखो जैन लोग खेती नहीं छाटनी पड़ती, सुना होगा अनाज पानी पे, कोई जैन है इधर जो भी उगाते हैं खेत में, खेती का धंधा नहीं करते। मगर डायमंड का क्या बताया था, उसमें कम से कम हिंसा होती है, हिंसा तो हिंसा होती है और करते हैं। उनको बताया मेरे हाथ कपड़े का भी करते हैं, मगर जिसमें हिंसा कम होती है ऐसा धंधा करते, 25 बीघा खेती का तो कभी नहीं करेंगे, घर में प्लांटेशन भी नहीं उगाड़ेंगे, क्या जाने थोड़ा बहुत करेंगे और केयर करेंगे, दवा तो नहीं छाटेंगे खेत की, वो पाउडर दवा सब छाटते हैं, खेत पे उसका जीवन निर्भर है। तो क्या बताया दादा भगवान ने कि भाई आपका खेत की आया है तो दवा छाटनी पड़ती है, मगर राजी खुशी से मत छाटो और भावना करना। तो दादा अवतार तो मेरा ये बहनों का आया है खेती करने का, उसमें कितनी हिंसा होती है। देखो जैन लोग खेती नहीं करेंगे, सुना होगा आपने, कोई जैन है इधर? हाँ तो बहनों को खेती का धंधा नहीं करते, डायमंड का क्लीन रखो, उसमें कम से कम हिंसा। कॉकरोच क्यों आता है, मच्छर क्यों आता है, और करते हैं बर्तन भी इंडिया में, कपड़े का भी करते हैं, सुबह जिसमें हिंसा कम होती है ऐसा धंधा मशीन है, इसलिए मालूम नहीं। खेती का तो कभी नहीं करेंगे, रसोड़ा जितना घर में प्लांटेशन भी नहीं उगाड़ेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, दवा तो नहीं छाटेंगे, वो पाउडर दवा सब छाटते हैं। कॉकरोच भी आते, हाँ वो तो आएगा, इधर नहीं आते तो अच्छा है, इधर कॉकरोच आता है तो दादा भगवान बहुत इंडिया से आता है कि इधर ही इंपोर्ट करते हैं, इधर ही पैदा होता है, कॉकरोच लोग इधर पैदा होता है। हाँ तो बहनों को खास दादा भगवान बोलते हैं जो किचन में क्लीन रखो, छोटे छोटे, वो कॉकरोच क्यों आता है, मच्छर क्यों आता है, तो बर्तन भी इंडिया में तो शाम का बर्तन सुबह साफ, साइंस क्या बोलते हैं जितने भी साफ, इधर तो सब मशीन है किचन में, मगर तो रसोड़ा जितना गंदा कम आए स्मेल वाला, और कितना भी रात का जो खुराक में ऐसे गंदवाड़ा रखेंगे, साफ सुथरी कम रखेंगे तो ज्यादा मच्छर आएंगे, क्योंकि गंदगी का उसका जन्म स्थल ही गंदगी आएगी।
कादव कीचड़ और उनका जन्म, जीव जंतु का जो जन्म होता है, हाँ वो तो आएगा, जो इधर नहीं पसीने से ही जन्म होता है। इधर कॉकरोच आता है, बोलते अपना पसीना है, उससे भी जैसे कोई जंतु होता है, कोई 10 घंटा Import 12 घंटा उसका इधर ही पैदा होता है। कभी छोटे छोटे कॉकरोच लोग इधर पैदा होता है जंतु का, यानी कि इसलिए जो भी इतना भी अच्छी तरह से आप साफ सुथरी रखेंगे तो इतना कम तो आएगा, इसका प्रोडक्शन कम होगा। साइंस क्या बोलता है कि जितनी भी साफ सुथरी रखेंगे ना घर में, किचन में, तो आएंगे सही मगर कम आएगी, देखना। और कितना भी ऐसा बोलते हैं किचन में ऐसे गंदवाड़ा रखेंगे, साफ सुथरी कम रखेंगे तो ज्यादा मच्छर आएंगे, क्योंकि गंदगी का उसका जन्म थोड़ी गंदगी है, जितनी मल्टीपल गंदगी रखेगी ना जन्म इतना जल्दी इतना प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। बाहर देखो ना, वो एक घास में है, अपने पसीने से ही जन्म होता है, ज्यादा तो बोलते अपना पसीना है, बारिश किया उससे भी जन्म कोई जंतु होता है, कोई अपने बाहर बैठ 10 घंटा फिर 12 रहना पड़ता है, उसका आयुष्य ज्यादा नहीं होता है, कभी छोटे छोटे तो ज्यादा पैदा होता है, उसका आयुष्य ज्यादा नहीं होता है। यानी कि अगर हमें प्रोटेक्ट ले रहना है उनके इतना भी अच्छी तरह से, तो स्वभाव है काटने का, तो इतना कम आएगा करने का, जिसका प्रोडक्शन कम को नहीं है आपको मैं काटूं, मगर वो तो निष्पक्षपाती है, हाँ उसको काटो इसको नहीं काटो, क्या नेचर है, अपने को संभालने का है, ऐसा बोलते हैं। फिर आपको दवा छाटने की है, उसको मारने का है, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। हम तो खाली आपको जानकारी देते हैं, आप हमें मल्टीपल आएंगे रखेंगे और कहने भी नहीं आए जल्दी इतना प्रोडक्शन मारना बंद कर दो कल से। बाहर देखो प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं, आप मारेंगे कितना हिंसा करेंगे तो आपके नहीं गिरा, ये जो डेवलपमेंट का जो अंदर आना पड़ता है गार्डन, उस पे आवरण आएगा, जीव जंतु ज्यादा जैसे आप जानबूझ के मारेंगे, जानबूझ के उस, मगर हमें प्रोटेक्ट अनजाने में मर जाएगा, उनका तो स्वभाव है काटने का, तो उसका अनजाने में रोग करने का कि जो भी है, और जानबूझ के है आपको और काट, दो प्रकार का सब तो निष्पक्षपाती है, उसको काटो इसको नहीं काटू, नेचर है, अपने को संभालने का है, होता है कुछ न कुछ, आपको दवा छाटने की, माँ बाप को जानने का है कि बच्चे यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। क्यों तो खाली आपको जानकारी देते हैं, जिनकी आप हमें देखने नहीं आएंगे और कहने भी नहीं आए, माँ बाप को पूरी क्या मारना बंद कर दो कल से, हम तो माँ बाप एंड लॉस बताते हैं, आप मारेंगे उसकी हिंसा करेंगे तो आपके ज्यादा किसका डेवलपमेंट का जो क्यों माँ बाप का उस पे आवरण आएगा, हाँ नहीं जैसे आप जानबूझ के मारेंगे तो जानबूझ के उस जानबूझ के किया हुआ अनजाने में मर जाएगा, माँ बाप का था, और बच्चे का अनजाने में की बात कर रहा हूँ, वो जानबूझ के भी और अनजाने दो जानबूझ के किए हुए करेंगे, वो माँ बाप होते हैं फिर, और अनजाने में किए हुए कर्म उसका लड़का बालक अपंग जन्म होता है, लड़का है लड़की है, माँ उसको माँ बाप को ज्यादा भुगतना पड़ता है कि बच्चे को, चाचा है मामा है, इतना अपंग है, सब जिंदगी रानी है जेठानी है, 50 साल क्या आपको लगता है, और माँ बाप को पूरी सेवा करनी पड़ती है बचपन से, तो माँ बाप ये तो पेट से हुआ वो बच्चा, और पराया लड़का अपने पेट से नहीं हुआ, ज्यादा किसका, तो क्यों माँ बाप का ब्लड रिलेशन क्या है, हाँ नहीं अटैचमेंट भगवान ने कहा जानबूझ के किया हुआ कर्मबद्ध हिसाब वो माँ बाप का था, और बच्चे वही लड़की आपके घर आएगी की बात कर, पूरी जिंदगी वो अनजान में किया था, बड़ी करनी पड़ेगी, तो जानबूझ के किए हुए कर्म करने पड़ेंगे, माँ बाप होते हैं फिर और अनजान में चली जाएगी किए हुए कर्म, उसका लड़का ऐसा ऋणानुबंध होगा, वो लड़का ससुराल में भी है, माँ है, जाके भी आपको मदद करेगी, बहू है, लड़का नहीं मदद करता है, मामा है, ज्यादा बेटी मदद करे, वो सब क्या है जेठानी है, और लड़का क्या आपको लगता है पाका सही सच है, और बहू आई, बहू ने बोला तो पेट से हुआ, अभी तो मेरी वो बच्चा मेरा, और पराया लड़का अपने पेट से नहीं हुआ, पड़ोसी का है, अपना नहीं है, माँ बाप का, तो ये ब्लड रिलेशन क्या है करना है, मुझे ऐसी तरह से कुछ नहीं दादा, भगवान ने क्या बताया, आप माँ बाप की फेवर भगवानों ने ऋणानुबंध हिसाब क्या है, क्या
ऋणानुबंध है। वही लड़की आपके साथ, लड़के के पूरी जिंदगी के साथ, जमाई के साथ बड़ी करनी पड़ेगी। कोई किसी का लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, दादा भगवान तो बोलते। फिर ये सब ऋणानुबंध हिसाब पूर्वक कर्म में, ऐसा ऋणानुबंध होगा से वही बेटा आपके घर आएगा, जाके भी आपको मदद दुश्मन होगा तो आपकी दुश्मन नहीं मदद करता, उससे ज्यादा बेटी मदद करेगी। वो सब क्या है? और हेल्पिंग, और लड़का बहुत हेल्प से पाका तो लड़की बन के भी हेल्प आएगी। बहू ने बोला हमें लगता है कि मेरे भी तो मेरा बेटा मेरे सामने कोर्ट में मेरा सुनना पड़ेगा आपको, माँ बाप को। लड़की ने ऐसा किया, लड़का ने ऐसा, माँ बाप हकीकत में उसके हाथ में सत्ता ही नहीं है, नहीं किसी के हाथ में। मुझे ऐसी तरह से रहना, नहीं तो मैं पूर्व कर्म के हिसाब का ऋण लेता, ऐसा भी लड़का होता है। क्या है क्या? ऋणानुबंध है, बहू के साथ और लेना के साथ, लड़की के साथ, पैसे में समझ जमाई के साथ आती है ना, मैंने पैसा दिया, किसी का लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, दादा भगवान तो बोलते किधर से दिया। ये सब ऋणानुबंध हिसाब, पूर्वानुबंध का कर्म की गति न्यारी, वही बेटा आपके घर आएगा। इसलिए बताया अगर दुश्मन होगा तो आपकी दुश्मनावट को कोई किसी का मित्र भी नहीं है, सुख देने वाला कोई नहीं है, और अपना ही सुख अपने को भुगतना बहुत हेल्प किया होगा, अपना ही दुख बन के भी हेल्प करने आएगा। वो बेटा बन के हमें लगता है कि मेरा बेटा मेरे सामने कोर्ट में अपना ही सुख, बेटी बन के लड़की ने ऐसा किया, लड़का ने दिया हुआ सुख बेटी बन के भी उसके हाथ में सत्ता ही नहीं है, अपना ही उसके दुश्मनावट। तो बेटा पूर्व कर्म के हिसाब का ऋण का मुंह भी नहीं देखते, लेती देती का मुंह नहीं देखूंगा, ऋणा चला जाता हूँ, घर से निकल जाता हूँ। देना और लेना, देखो कितना इंडिया में समझ आती है ना। तो मैंने पैसा दिया आपको तो आप वापस करेंगे ना, चाहे बैंक से लिया के। इधर तो थोड़ा रहता है, चलो शादी के बाद का कर्म की गति न्यारी अलग रहते, इसलिए बताया तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, साथ में भी रहते, कोई किसी का मित्र भी नहीं है, दुश्मन देने वाला कोई नहीं है, अपना ही पूर्व कर्म का है पड़ता है। लगता है कि बेटा ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, वो बेटा ने ऐसा किया, जेठानी ने ऐसा किया, मगर उसकी करने अपना की सत्ता नहीं है। बेटी बन के निमित्त है, पूर्व का हुआ का हिस्सा बन के भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो बेटा घर में आएगा, दुश्मनावट, कोई बेटी आएगी, बेटा बन के आएगी, पूरा जिंदगी आपका मुंह भी नहीं देखते। क्या बता, मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा, चला जाता हूँ, घर से निकल जाता हूँ। देखो कितना इंडिया में केस होता है, इधर तो कम होगा। इधर तो थोड़ा ऐसा है, चलो शादी के बाद एक साथ नहीं रह सकते, उधर भी शादी के बाद अलग रहते, जैसे लेती देती का पैसे का हिसाब तो कैसे, हम तो लोन लेते ही साथ में भी रहते, और फिर लोन लेना बंद करने का हिसाब, और देवा पिछला है ना, पूर्व कर्म का है, करना पड़ेगा। अपने लगता है कि बेटा ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, देरानी ने ऐसा किया, जेठानी ने ऐसा किया, लोन लिया, मगर वो लोन है, सत्ता नहीं है, दूसरे के पास कुछ न कुछ पूर्व का कर्म का हिसाब उनके साथ जुड़ा हुआ है। लाल बेटा वो घर में आएगा, कोई बेटी आएगी, कोई बहू आएगी, कोई देरानी जेठानी, वो मैं बताना, पैसा है अपने पास, कर्ज क्या बता, वो चुका दो व्यक्ति को कि बैंक को, यानी कि जो कुछ आता है वो जमा करो, पैसे में पक्के। हाँ पूछो, जमा करते, डेबिट क्रेडिट नलीफाई करते, तो जो दुख आता है उसको जमा कर दो। इसलिए तो ये विज्ञान है कि आपको जैसे लेती देती का पैसे का हिसाब कैसे, हम तो लोन लेते हैं, और फिर लोन लेना बंद करने का, और देवा पिछला है ना, दुख नहीं देना, वो बैंक को रीपे करना पड़ेगा, लोन रीपे भी करते और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी करते लोन लेके, यानी कि किसी को भी लोन लिया, जो भी मैं पेमेंट कर की सभी को, दूसरे के पास ये सभी पेमेंट कर दूं, आशा, यानी कि दुख जो भी आशा संजोग आएगा मुझे, लालच बन कर पेमेंट, लोभ बन कर, और किसी को पेमेंट भी कर बंद करते, सामने लोन नहीं लेते, यानी पैसा है अपने पास, करते हैं वो चुका दो, फिर से नया कर्म कैसे बनते हैं, मैंने जो कुछ आता है मुझे वो जमा कर लो, पैसे में पक्के, हाँ उसको मैं छोड़ेगा, जमा करते, डेबिट कर्म भी बनता है, नलीफाई करते, तो जो दुख आता है उसको जमा कर, जो कुछ भुगतना पड़ता है, तो ये विज्ञान है कि आपको और कोई दुख देने वाला है, निर्दोष है,
दोनों ज्ञान की शुरुआत तो करो, नक्की करो। इसलिए दादा भगवान ने बहुत अच्छी एक सेंटेंस बताया, अभी किसी को रहने देना, अभी किसी के पास जो भी सफर करना पड़ता है, लेने की नहीं है, वो मेरा कर्म के हिसाब से, यानी कि किसी को भी निमित्त जो भी मैंने पेमेंट हुए कर्म सभी को से मुझे जो भी लोन लिए सभी पेमेंट कर दूं। सामने वाला निमित्त है, जो भी संजोग आएगा मुझे, ऐसा एक दो भाव ऐसे निकल पेमेंट कर दूं, और वो पेमेंट भी करते सामने लोन भी ले कौन हूँ, यानी कि दुख भोगते हैं, ऐसे ही फिर से नया कर्म कैसे बनते हैं मैं देख लूंगा मैं ही। पर अभी तो मुझे दुखी ऐसे ज्ञान ही देते, ऐसे संजोग को मैं छोड़ेगा, प्राप्त होगा नया कर्म। तो आपको अंतस्करण एक बार ऐसा तो नक्की करो तो प्राप्त होनी चाहिए, भुगतना पड़ता है। मेरी भाई साहब ने बताया तो मच्छर तो मारना पड़ेगा, इतने रोज सामने वाला निमित्त है, निर्दोष है, तो ऐसे तो ज्ञान की शुरुआत तो क्या होगा। अंदर दादा बहुत उल्टी है एक सेंटेंस बताया, व्यवहार दृष्टि से सही है, जो भी सफर करना पड़ता है फैक्ट भगवान की भाषा में क्या है, अगर किसी को कुछ न कुछ निमिषा की मैंने किए हुए कर्म पड़ेगा से मुझे सफर करना पड़ता है। तो सामने वाला निमित्त है, गति कैसे अपने तो सो जाते हैं, ऐसा तो भाव ऐसा निकल जाता है, मशीनरी है, तो आपको सुबह आपका संजोग में कौन नया जन्म ही समझो ने उनकी, नहीं तो हार्ट बंद हो जाएगा। तो मैं मालूम है सो जाने के बाद परमात्मा हूँ, हार्ट से ज्ञान ही चलता रहेगा, ऐसे संजोग आपको प्राप्त हो। थोड़ा पहले तो आपको अंतस्करण थोड़ा ऐसी प्योरिटी सही समझ तो प्राप्त जागना पड़ेगा पूरी नाइट। मेरा हार्ट चालू है, भाई साहब ने बताया तो मच्छर को मारना पड़ेगा, इतने रोग मशीनरी ऐसी चलती है, तो ऐसे तो फिर क्या होगा। ऐसे कुदरत की समझन उल्टी है, जंतु और व्यवहार दृष्टि से सही है, रिलेट आया कुदरती है। ये तो भगवान की भाषा में क्या है, विश्व वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या करेंगे आप। आपको अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो अभी बंद होगी कि चलती है, कर्म की गति थोड़ा कम होगा, सो जाते हैं, हार्ट चलता है नहीं, धीमा हो गया होगा, स्लो गया, मुझे मालूम नहीं, पेपर इधर आता नया जन्म ही समझो ने, तो इंडिया हार्ट बंद हो जाएगा, जोर से चलती है सो जाने के बाद, तो उसका परिणाम आएगा, चलता रहेगा, वर्ल्ड वॉर होगा, तो क्या करेंगे आपने, किसी का दोस्त देखेंगे। चलो अभी तो मच्छर का दोस्त दिखा है, कॉकरोच का दिखा, जागना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर में, तो फिर हार्ट चालू, किसी का दोस्त देखेंगे, सोने ये सब नेचर है, मगर अपने भावना क्या करने की नहीं होना चाहिए। जीव जंतु और सभी ये रोगचाला का विनाश, कोविड वर्ल्ड वॉर ने क्या कुदरती है, ये तो आप ये रोगचाला तो विश्व वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या करेंगे आप, विनाश हो जाए। अभी ये यूक्रेन वर्ल्ड वॉर हो जाए की लड़ाई तो अभी बंद होगी, और जापान बड़ा कम होगा ने, जापान ने हिरोशिमा पे बम डाला था, कितने लोग विनाश मारे, पेपर नहीं पड़ता नहीं, और कितने सालों तक इंडिया था तब सुना था जो बर्बादी जोर जोर से चलती है, एक बॉम्ब का कभी तो परिणाम आएगा, कितने शक्तिशाली बॉम्ब, तो क्या करेंगे आप बनाए हैं, किसी का दोस्त बनाएंगे। चलो अभी तो मच्छर का विनाश करने के दुनिया को विनाश करने, वहां आप किसी का दोस्त देखेंगे, वो मच्छर को रोकेगा, सब नेचर को कैसे रोकेंगे, मगर अपने भावना क्या करने की नहीं होना चाहिए। कोरोना का तो आप रोकते हैं ना, ये मनुष्य का रोका नहीं आपने, वर्ल्ड वॉर ने क्या सत्ता नहीं थी रोकने की, मनुष्य का विनाश, इसमें भी सब किसी को पसंद है प्रिकॉशन हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, कितने भी हिरोशिमा ने पानी और जापान पे भी लेते थे, जापान ने हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला था, कितने भी लोग विनाश हो गए थे, कितने काळजी नहीं रखे उसको नहीं हुआ, सालों तक काळजी रखते थे उसको हो गया, जो बर्बादी। जहाँ हम ये कर्म की गति समझ नहीं पाते, कितने शक्तिशाली ऐसा उदय कर्म आया, सामूहिक क्यों बनाए है, जैसे प्लेन टूटता है, आदमी को विनाश करने के, दुनिया को वर्ल्ड वॉर विनाश करने, वहां फ्लड आता है, मच्छर को रोकेंगे, धरती कम हुआ तो बॉम्ब को कैसे रोकेंगे। 2001 में इंडिया में धरती कम हुआ ने, रोकना तो होगा ना, देखा कोरोना का तो आप रोकते हैं ना, अहमदाबाद में कितने मकान रोका ने आपने, कच्छ भुज में वो भी सत्ता नहीं थी, वहां कहाँ आप मच्छर बचाएंगे, इतने कहाँ सब वो ये सब प्रिकॉशन, कुदरती आफतें आएगी तो भी कोरोना, इसलिए कहते हैं कितने भी गर्म मेरे वाला पानी और दवा जो भी लेते थे, मास्क पहनते थे, तो ये कितने भी काळजी लोग रखते थे,
वो जो कार्ड जानबूझ के तो नहीं हुआ, वो जो कागजी रखा तो उसको हो गया, तो माफी मांग लो। वो जहाँ हम ये कर्म की गति समझ नहीं पाते। अहिंसा परमो धर्म। कोरोना ऐसा भगवान ने उदय सभी कर्म आया, कर्म में सामूहिक अहिंसा का जैसे प्लेट बताया। टूटता है तो मर जाते, सामूहिक कर्म का फल है। वर्ल्ड वॉर सामूहिक कर्म का है। और फ्लड आता है, ये धरती कम हुआ 2001 में इंडिया में धरती कम हुआ ने, सुना तो होगा ना आपने, देखा नहीं होगा तो। अहमदाबाद में कितने मकान, अपार्टमेंट, कच्छ भुज में, अभी वहां कहाँ आप मच्छर बचाएंगे, कहाँ वो ये सब कुदरती आफतें आएगी। इसलिए कहते हैं कि हमारे हाथ से कोई हिंसा न हो और हमें ऐसे भुगतना नहीं पड़े, तो ये कर्म का हिसाब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो जानबूझ के तो मत मारो, अनजाने में मर गए तो माफी मांग लो। बस हिंसा, अहिंसा परमो धर्म, ये भगवान ने सभी धर्म में अहिंसा का बताया। ये लाइफ तो इसलिए जागृत कहाँ रहना है। अपने जो भूल हो जाती है, जन्म की मैं बात करता था, मगर इधर भूल होती है उसका फल चाहे अवतार में भी आता है और दूसरे भाव में भी आता है। तो जो मन से किया होगा कर्म अगले अवतार में भुगतना पड़ता है, और वाणी और वर्तन से किया हुआ कर्म ये भाव में भुगतना पड़ता है। तो ये भाव में जो जो गलतियां होती है तो पहले बताया क्यों होती है, उसके पे मत सोचो, मगर हो गई उसको रेक्टिफाई करो, उसका प्रोटेक्ट मत करो। वो तो मैं पहले बताया कि जो जो गलतियां हो गई वो मेरी वीकनेस है कि स्ट्रांगनेस है। गुस्सा हो गया उसको स्ट्रांगनेस मानते हैं कि वीकनेस मानते हैं? ये लाइफ सभी को आप वीकनेस मानेंगे। जागृत कहाँ रहना है, अपनी गलती नहीं है, कोई और अपने पे चढ़ बैठेंगे, मगर इधर आपने ऐसा मेरा बिगाड़ा, फल ने नहीं बिगाड़ा, चाहे अवतार चलो आता है और दूसरे भाव तो भी आता है, निकल जाना। तो जो मन से किया हुआ कर्म अगले अवतार में लिखना पड़ता है, और वाणी और वर्तन से किया हुआ होगा मेरी गलती भुगतना। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो और ये भाव में जो जो गलतियां होती है पूरी काळजी लूंगा, अलर्ट होगा। तो पहले बताया कि वैर से जगत हुआ है, उसके राग से नहीं हुआ है, मगर खड़ा नहीं है, राग से खड़ा नहीं है, वैर से खड़ा है। उसका पहले जमाना में सतयुग में राग से जगत खड़ा, जो जो गलतियां हो गई कलयुग में वैर से से कि स्ट्रॉन्गनेस नहीं बनते, इस तरह से ऐसा हो गया, उसको स्ट्रॉन्गनेस मानते हैं, अवॉइड क्लेसिस। तो सभी को आप वीकनेस मानेंगे, पॉजिटिव दृष्टि पढ़िए, उसमें अपनी गलती नहीं है, कोई और अपने पे चढ़ बैठे के साथ माँ बाप आपने ऐसा मेरा बिगाड़ा, रहना नहीं बिगाड़ा, जीना चाहिए। चलो मान लो आर्ट ऑफ लिविंग, तो भी जीवन जाना चाहिए, नहीं तो वेर किस तरह से जीना चाहिए। वेरी सॉरी, मुझे मालूम नहीं है, वो तो मेन मनुष्य अवतार का वेरी वेरी सॉरी कि हमें नेक्स्ट टाइम ये मनुष्य अवतार पूरी काल सार्थक बने और सभी भूलों से। वैर से जगत हुआ है और राग से नहीं हुआ, गलती खड़ा नहीं है, राग से खड़ा नहीं है, वैर से खड़ा है। पहले जमाना में माफी और सतयुग में राग से जगत खड़ा भाव की बात है, और कलयुग में वैर से अपना अच्छा वैर नहीं कैसे आएगा। इस तरह से हम एग्जाम देंगे, ये सब किताबें से एग्जाम पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव किताबें पढ़िए, उसमें दादा भगवान ने बताया कैसे जीना चाहिए। रिजल्ट तो हम बच्चे के साथ, वो परिणाम है, बच्चे के साथ कैसा रहना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, क्या आर्ट ऑफ लिविंग जीवन इंटरनेट से भी मंगा लेते हैं, इस तरह से जीना चाहिए। और रिजल्ट परिणाम मगर एग्जाम देना तो वो तो लाइफ टेस्ट मनुष्य अवतार का मनुष्य अवतार टेस्ट एग्जामिनेशन, कैसे हम मनुष्य एग्जाम में सार्थक बने, परिपूर्ण होते, कैसे लिखते, कैसे एग्जाम देते, और उसका रिजल्ट ही ऐसा आएगा न हो और हो गई तो ये पूरी एक एक संजोग माफी हमें प्रायश्चित करें पूरी एग्जाम का। तो ये भाव की बात है, भी संजोग आया और नेक्स्ट भाव इतना अच्छा रहेगी, कैसे आएगा
किस तरह से एग्जाम क्लास देंगे, का संजोग अच्छी आया, तरह से कोई एग्जाम अठरावन देंगे, करने का पढ़ेंगे, है, लिखेंगे, सामने से आया तो आप रिजल्ट कैसी क्षमता रखेंगे, वो तो ऐसी सब सब समझदारी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट बाबू बोलते How हैं वो do you रिजल्ट avoid classes? रिजल्ट तो हम प्लेस कैसे वो avoid परिणाम करेंगे? है, एडजस्टमेंट वो तो कैसे अपने- लाइफ में लेंगे, ये सब दादा भगवान क्या- ने गीता में लिख दिया। इंटरनेट तो से भी पूरी मंगा लेते जिंदगी हैं। हमें कि किस तरह से एग्जाम जीना देना, चाहिए, ये पूरी लाइफ पूरी लाइफ एग्जामिनेशन बचपन है हमेरी। युवानी मनुष्य अवतार का टेस्ट एग्जामिनेशन, तीन कैसे हम एग्जाम में एग्जाम आएगी परिपूर्ण होते हैं, कैसे तो लिखते ये हैं, एग्जाम किसी में एग्जाम पास लेते होना है, हैं, बस उसका रिजल्ट ऐसा सब आएगा। आता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, पूरी एग्जाम देनी है एक आपके एक हाथ में। संजोग हमें वो कर्मफल एग्जाम का रिजल्ट होता है। कोई भी संजोग आया तो आपकी हाँ, कितनी बोलिए। स्थिरता रहेगी, कैसी शांति रहेगी, किस तरह से क्लेश का संजोग आया, कोई अठड़ामन करने का हाँ। है, सामने से आया तो आप कैसी क्षमता ये रखेंगे? अनाज पानी ऐसी सब हम खा समझदारी सकते तो हैं, होनी जिनको चाहिए। खा सकते हैं, हाउ डू यू दूसरे को अवॉइड खा नहीं सकते। अब क्लेश कैसे अवॉइड करेंगे, अनाज एडजस्टमेंट पानी कैसे लाइफ में लेंगे, हम जीव है, ये सब तो दादा हम भगवान ने जीव को गीता खा में लिख सकते। दिया। अजीव को हम नहीं खा सकते। तो पूरी पर जिंदगी कौन सा जीव हमें का हरण किस तरह करना, से खाना, जीना वो चाहिए, थोड़ा विवेक होना चाहिए। पूरी लाइफ बचपन, युवानी और विवेक तो बुढ़ापा। समझे ना। तीन हाँ, एग्जाम्पल ये एग्जाम नॉन वेज आएगी। खाते लोग, तो जो ये एग्जाम मुसलमान में पास खाते हैं होना उसके है, तो बस। ब्लड में होता है। इसमें सब अब आ तो गया। अपने हिंदू भी लोग, रिजल्ट आपके पटेल हाथ में लोग, नहीं है, एग्जाम बनिया देनी है लोग। आपके हाथ में। अभी तो जैन लोग भी कर्म खाते फल हैं, है। ऐसा सुना है? रिजल्ट नहीं सुना। हाँ वो बोलिए। आमलेट मामलेट और तो मीट, मैं तो आमलेट बोलता हूँ। तो मीट नहीं है। हाँ, ये अनाज पानी हम खा सकते हैं, मर्गा, जिनको खा बकरी, सकते हैं, सब खाते हैं। दूसरे को खा नहीं सकते। आमलेट तो इंडा है, वो भी नॉन अनाज वेज पानी हम जीव बोलते हैं कि इंडा भी वेजिटेरियन को खा सकते हैं। अजीव को हम नहीं खा वेज बोलते। अच्छा, इंडिया कौन में सा non-veg जीव का बोलते हैं, जीव का अलग-अलग हरण परिभाषा। करना, खाना, वो इधर थोड़ा soft विवेक होना चाहिए। इधर तो ड्रिंक्स भी लेते हैं ना, कॉमन है पार्टी में। विवेक तो वहाँ तो समझे ड्रिंक ना। लेके तो इधर हाँ, तो ड्रिंक्स नहीं example लेके है, तो बोलते कि देखो नॉन वेज खाते लोग, बहुत साहूकार है, जो बहुत सही मुसलमान बात है, खाते हैं drinks उसके भी तो नहीं ब्लड लेते। में होता है। सबकी परिभाषा अब तो अलग अपने अलग है। हिंदू भी लोग, यानी कि पटेल लोग, जीव बनिया को भी- लोग, जीव अभी तो को ही खा जैन सकते, लोग भी अजीव खाते को हैं, नहीं ऐसा खा सुना है? सकते। इसलिए ये नहीं भगवान सुना। ने बताया। तो कौन सा वो जीव आमलेट खाना मामलेट और नहीं खाना, वो विवेक होना चाहिए। बस मीट इतना बताया। तो आमलेट बोलता हूँ, तो मीट नहीं है वो। मर्गा, बकरी सब खाते मीट। आमलेट तो इंडा है, वो भी नॉन वेज है कि वेज? कोई बोलते हैं कि इंडा भी वेजिटेरियन में आता है। इधर वेज बोलते हैं, अच्छा इंडिया में नॉन वेज बोलते हैं, अलग अलग परिभाषा होते हैं। इधर सॉफ्ट और इधर तो ड्रिंक्स भी लेते हैं ना, कॉमन है पार्टी में। वहाँ तो ड्रिंक लेके तो, इधर तो ड्रिंक्स नहीं लेके तो बोलते हैं कि अनाज पानी के अलावा बहुत साहूकार है, बहुत शरीफ आदमी है, ड्रिंक्स भी नहीं लेते। सबकी परिभाषा अलग अलग है। यानी कि जीव को भी जीव को ही खा सकते, अजीव को नहीं खा सकते। हाँ, इसलिए ये भगवान जो ने आप बताया। तो कौन सा भगवान ने जीव क्या खाना बताया और नहीं कि खाना, आप वो विवेक नॉन होना वेज चाहिए। कब खा सकते हैं, बस इतना बताया। नॉन वेज की बात करते हैं आप तो कुछ अनाज पानी शाक भाजी सब वापरो ने, तो खाओ ने, कोई दिक्कत नहीं है। खाली नॉन वेज का काम बोला है वो मैं भी बता देता हूँ कि जो बकरी को वो जो बकरी को काटते हैं कि गेटा और जो मुर्गी को वो खुद काटते हैं, जैसे खुद साग भाजी को काटते हैं तो हर्ट होता है अपने क्या अनाज पानी के तो अलावा उसका ब्लड ऐसा होता है मुसलमान का, तो खुद काटते और उसको ऐसा तकलीफ नहीं होती है। और अपने मुर्गी कुकड़ा को काटेंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हाँ, लेकिन अपना हार्ट जो आप ऐसा है भगवान ने क्या बताया, सहन नहीं कर सके आप, तो जो सहन नहीं कर सकते कब खा सकते? खुद काटो और खुद खाओ। नॉन वेज की बात खुद काट नहीं सकते, अपना हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपना ब्लड ऐसा नहीं है। और मुसलमान का ब्लड ऐसा होता है, कुछ अनाज पानी के साथ काटने से उसका तो खाओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका खाली नॉन वेज का काम बोला है, किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना, वो मैं बात की। जो बकरी को, आपका क्वेश्चन अलग था, जो बकरी को काटते बहुत सारी और जो मुर्गी को
वो खुद काटते, क्या खाओ, जैसे खुद साग भाजी को काटते, हट होता है भी खेत में, तो उसका ब्लड ऐसा होता है और सब है मुसलमान का, तो आप खुद काटते और उसको क्या दिक्कत है आपको, ऐसा तकलीफ नहीं होती है। और अपने मुर्गी कुकड़ा को काटेंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अपना हार्ट ऐसा है सॉफ्ट, अपने सहन नहीं कर सकते, तो जो सहन नहीं कर सकते खुद काटो और खुद खाओ, तो खुद काट नहीं सकते, अपना हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं ब्लड ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंस है ऐसा नहीं, मुसलमान का ब्लड ऐसा खाने से आपका ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका जो आप हिंदू है नहीं होता है अंदर, आप मुसलमान होगा तो आपका किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना, आपको काटने से अरेराटी भी नहीं होगी, मुसलमान होगे तो उनको छूट दी है बहुत सारी मुस्लिम में। अक्सर मैं बताता हूँ कौन खा सकते, क्या खाओ अनाज, और उनकी लाइफ बचाने के लिए ऐसा नहीं है, ऐसे तो दरिया में देखो सारे अनाज पानी और सब है, तो आपने बड़े बड़े जीव ऐसे मुंह खोल के क्या दिक्कत है, पूरे उनके अंदर ही आ जाते। मछली होती है, प्रश्न क्या है, और फिश, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को ऐसा जीव कितने सारे जंगल में भी सिंह वाघ वो सब जानवर एक दूसरे को खा के उनका जीवन है, मगर मनुष्य अवतार में ये खाने से अपने हिंसा से नहीं, इनकी लाइफ इम्पोर्टेंस है ऐसा नहीं, ब्लड में नहीं है, ये खाने से जनरेशन में एक्सेप्ट नहीं करेगा वो लोग। आप हिंदू है, आप मुसलमान होगा तो आपका ब्लड जानवर कम हो जाएंगे, वो भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा अरेराटी भी नहीं होगी, इसके लिए नहीं मुसलमान होगे, मगर उनको छूट दी है भगवान डेवलपमेंट मुस्लिम में। अक्सर मैं बताता हूँ कौन खाने बताया, और उनकी लाइफ बचाने के लिए ऐसा नहीं है, ऐसे तो दरिया में देखो ना अपना ब्लड ऐसा नहीं है, हम खा सकते, बड़े बड़े जीव ऐसे मुंह खोल के रखते पूरे उनके अंदर ही काट सके वो खा सके। मच्छी होती है ना, ये सिद्धांत भी दिया साथ में, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को ऐसा जीव कितने सारे जंगल में भी सिंह वाघ वो सब जानवर एक दूसरे को खा के उनका जीवन है, मगर मनुष्य अवतार में ये खाने से अपने हिंसा से जो खाते नहीं है, हमें ब्लड में नहीं है, माँ बाप जनरेशन में नहीं है, वो लोग नहीं खाना चाहिए। अपने धर्म में भी बताया जिस जानवर कम हो जाएंगे ऐसा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसके लिए नहीं खाना। अगर हमारा है आध्यात्मिक डेवलपमेंट के तो दादा भगवान भेजते थे देखने के लिए, धर्म ने बताया कि मुस्लिम क्या है, कोई कुड़ में जन्म हुआ है, ब्लड ऐसा अपना ब्लड ऐसा नहीं है, ब्लड आतरड़ा खा सके उसको काट सके, आकर्षण नहीं हो, मेरा ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा काटने का, जो काट सके वो खा सके ये मगर ये सिद्धांत भी जो बेटे बकरे अंदर कत्ल खाना में घुसते हैं ना, तब से चिल्लाते, उसको मालूम पड़ जाता है मेरी कत्ल होने वाली है, इसे आप तो इधर काटने के बाद उसको दो ऐसा ऐसा बता, वो तो अंदर लाते उसकी स्मेल से समझ जाते हैं, इतने चीज करते हैं, तो बहुत गलत चीज है, तब से डरते। आपने कुछ पूछा? हाँ जो भी है, हमें तो कत्ल खाना में हमें तो दादा भगवान भेजते थे देखने के लिए कि भाई ये क्या है, कैसी हिंसा है, और मनुष्य में कैसा ब्लड आतरड़ा कुछ वो कुछ आकर्षण नहीं हुए किसी के लिए, वो इसलिए हमें उधर भेजते थे कि ये मगर वो जो बेटे बकरे अंदर कत्ल खाना में घुसते हैं ना, तब से चिल्लाते, उसको मालूम पड़ जाता है मेरी कत्ल होने वाली है, इसे आप तो इधर काटने के बाद उसको दो ऐसा ऐसा बता, वो तो अंदर तो ये समझ गए लाते उसकी स्मेल से समझ जाते हैं, हिंदुस्तान चीज करते हैं लिया, और हम जानते हैं पूर्व जन्म को, तब पूर्व जन्म में इनकी जो हम पूर्व जन्म में करेंगे वो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। ये इधर है ना अमेरिकन लोग ऐसे रीबर्थ को नहीं जानते, मैंने जो कर्म किए उसको भुगतना पड़ेगा, उनकी मान्यता नहीं है। यूरोपियन देश, अमेरिकन और जो भी आउट ऑफ इंडिया का, अब इंडियन लोग को ये सब समझना है, विवेक रखना है। जैसे जैन लोग तो कांदा बटाका लहसुन वो भी चीज नहीं खाते, वो बात अलग अलग है, मगर हम आप नहीं खाते, मगर नॉन जैन हो तो खाएंगे न, तो आपके धर्म में जैन में लिखा है
मगर बात उनकी भी सही है। मगर कौन आप तो ये खाते समझ हैं गए लहसुन नहीं कि भाई और कांदा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान आपका लेवल में आपने कैटेगरी जन्म जैसे मुस्लिम कैटेगरी, लिया। हिंदू कैटेगरी, और हम जानते जैसे अपने पूर्व इंडियन जन्म है को, मगर पूर्व मुस्लिम जन्म है कि जो हम पूर्व जन्म में इंडिया में करेंगे, कितने मुस्लिम तो है उसका फल हमें भुगतना वो पड़ेगा। पाकिस्तान से आए इधर होंगे वो तो है, अमेरिकन लोग मगर कन्वर्ट हो ऐसे गए वो भी rebirth को संख्या नहीं ज्यादा जानते। है। मैंने जो अभी कर्म क्रिश्चियन किए लोग उसको ओरिजिनल भुगतना तो पड़ेगा। रहे नहीं, उनकी मान्यता लंदन नहीं वाले है के जो भी यूरोपियन देश कन्वर्ट अमेरिकन हुए और जो भी वो आउट ऑफ क्रिश्चियन इंडिया लोग। का, तो वो लोग भी इंडियन खाते, लोग को मच्छी और ये सब भी समझना खाते। है, विवेक अपने- रखना है। जैसे अपने जैन आगे लोग धर्मों तो में बढ़ना कांदा है, तो बटाका अपना स्टैंडर्ड लहसुन, नक्की करना है। वो भी चीज नहीं इनका खाते। स्टैंडर्ड ये है, वो बात अलग अलग है। सबका स्टैंडर्ड अलग मगर अलग हम आप नहीं खाते, मगर नॉन सबसे जैन ऊंचा हो स्टैंडर्ड वो तो खाएंगे सबसे ज्यादा तो आपके धर्म में हिंस- जैन में लिखा है, मगर अहिंसा बात होगी, उनकी भी सही हिंसा है, कम होगी और आप तो खाते हैं सबसे लहसुन, ऊंचा धर्म और कांदा और आपका सबसे लेवल ऊंचा धर्म कैटेगरी कौन जैसे सा? मुस्लिम कैटेगरी, हिंदू कैटेगरी, मिनिमाइज जैसे अपने इंडियन है, हिंसा, मगर मुस्लिम है मैक्सिमाइज अहिंसा। इंडिया में वो कितने धर्म की मुस्लिम है, परिभाषा है। वो इसको जीव पाकिस्तान से वो आए होंगे वो आलू तो है, ज्यादा होता है। मगर कन्वर्ट हो गए वो इसको भी मना करते। संख्या आलू ज्यादा है। ज्यादा आता है। अभी आलू क्रिश्चियन खाते, लोग वो गलत ओरिजिनल तो ऐसा रहे नहीं, बोला, मगर लंदन समझ वाले लेने के का, जो भी यूरोपीय जो देश कन्नमूल कन्वर्ट यानी हुए, कि जमीन के नीचे वो उगता है, क्रिश्चियन लोग उसको तो लोग भी खाते, कन्नमूल बोलते। मच्छी और तो सब जैनों खाते। अपने नहीं खाते। अपने आगे धर्म क्योंकि में बढ़ना है, जमीन के तो अपने अंदर स्टैंडर्ड जो नक्की करना है। उगता है, इनका मूला स्टैंडर्ड है, ये है, अपना स्टैंडर्ड मूली, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग ये होगा। जो मगर कांदा सबसे बटाका, ऊंचा स्टैंडर्ड सब गाजर, सबसे ज्यादा कंद, वो सब जमीन के अंदर अहिंसा हो गई, हिंसा उसमें कम जीव होगी, बहुत और होते, सबसे बहुत ऊंचा धर्म, इसलिए वो लोग सबसे ऊंचा धर्म कौन धर्म में सा? आगे बढ़ने के लिए आवरण मिनिमाइज हिंसा, वो उसका मैक्सिमाइज वो अहिंसा साग नहीं खाते। वो धर्म तो की लीलोत्री परिभाषा भी नहीं खाते, ये तो पर्यूषण जीव वो क्योंकि आलू साग में भाजी ज्यादा जो होता है, पे जीव जंतु इसको आते हैं मना करते, तो उसकी आवरण हिंसा ज्यादा नहीं हो। आता है। तो लीलोत्री आलू भी खाते, वो गलत है, पर्यूषण ऐसा कल नहीं से बोला, शुरू होता है, मगर समझ लेने का 24 तारीख को जो 23 कन्नमूल यानी कि जमीन कल के से नीचे शुरू होता उगता है, उसको तो उसमें तो आप कन्नमूल तो बोलते। लीलोत्री भी नहीं तो खाएंगे जैनों शायद, जो पालन करते हो नहीं खाते, क्योंकि तो अच्छी बात है। जमीन के जो अंदर अच्छा जो करता है, अच्छी बात है, पूरा करेंगे। मूला चलो है, एक प्रार्थना बुला ले, शुद्धात्मा प्रति यानी कि जो कांदा हे बटाका, अंतर्यामी परमात्मा, गाजर, कंद, सब आप हरेक जीव जमीन के मात्र अंदर में होता है। विराजमान तो उसमें है, जीव बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और मुझ में भी विराजमान धर्म है। में आगे बढ़ने के लिए आवरण कम होना, आपका जो स्वरूप उसका वही मेरा साग भाजी स्वरूप नहीं है। तो लीलोत्री भी नहीं मेरा खाते, स्वरूप ये पर्यूषण में। शुद्ध क्योंकि आत्मा साग है। भाजी जो पे जीव जंतु हे आते हैं, शुद्ध आत्मा उसकी भगवान, हिंसा नहीं हो, तो लीलोत्री भी नहीं मैं खाते। आपको ये पर्यूषण कल से शुरू होता है, भेदभाव से 24 तारीख को, 23 अत्यंत भक्ति कल से शुरू पूर्वक होता है। तो नमस्कार उसमें तो आप तो करता अभी हूँ। लीलोत्री भी नहीं खाएंगे शायद, अज्ञान तो पालन करते हो वश तो अच्छी बात है। जाने जो अनजाने अच्छा में करता है अच्छी बात है। पूरा करेंगे। मैंने जो जो चलो एक दोषों किए प्रार्थना बुला हैं, ले, शुद्धात्मा प्रति 2 मिनट। गलतियां की है, हे अंतर्यामी परमात्मा, सभी गलतियों को आपकी आप हरेक जीव मात्र में जाहिर विराजमान है, और उसका हृदय और मुझ में भी विराजमान माफी है। मांगता हूँ, क्षमा चाहता आपका स्वरूप और सभी गलतियों का वही मेरा स्वरूप है। मुझे क्षमा करे मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, और फिर से ऐसी गलतियां शुद्ध आत्मा भगवान मैं कभी न करूं। मैं आपको ऐसी मुझे आप वेद भाव से अत्यंत आप ऐसी कृपा करो के नमस्कार करता हूँ। भेदभाव दूर हो जाए बस, और वेद स्वरूप की प्राप्ति हो। मैंने जो जो हम आप दोषों किए हैं, अवैध स्वरूप से गलतियां की है, सभी गलतियों को आपकी किताबें रखी है, जाहिर करता जिसको आता है, और ले जाना और पढ़ के वापस हृदय पूर्वक माफी गए तो भी चलेगा, इतनी है क्षमा चाहता हूँ। सभी गलतियों का मुझे क्षमा करे क्षमा करे रहित इस तरह दृष्टि, और फिर से ऐसी गलतियां मैं कभी न करूं।
ऐसी मुझे आप शक्ति दो, ऐसी मुझे आप शक्ति दो, आप ऐसी कृपा करो कि आप ऐसी कृपा करो हम में से हमें से भेदभाव दूर हो जावे भेदभाव दूर हो जाए और अभेद स्वरूप की प्राप्ति हो। और अभेद स्वरूप की प्राप्ति हो। हम आप में हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार जय सच्चिदानंद। ये किताबें रखी है, जो गुजराती जिसको आता है तो ले जाना और पढ़ के वापस उनको, जब भी नहीं दे गए तो भी चलेगा, इतनी है। तो ये वितराग दृष्टि है जो गुजरात, ये भी अच्छी है, राग द्वेष रहित वितराग दृष्टि। और जिसको चाहिए वो देखना, ले जाना, आपको पसंद है तो